Assalamu alaikum to all the participants and the viewers who are watching us live on our Facebook page, Rehan AI Teachers Institute. This is me, Mariam Zulfikar, training Wali, working as Vice Principal at Rehan School Online Academy and Facilitator at Rehan AI Teachers Institute Teacher Training Bootcamp for 2 months. I welcome all the participants in today's class. Tonight is a new week has been started and the date is 14th July 2025 and the time is 22 minutes past 9 p.m. UTC plus 5 according to Pakistan Standard Time. Thank you so very much for joining us today. We'll proceed towards the meditation so that we can feel more energetic in the rest of the 2 hours. So yes, Nazimullah bhai, over to you. In this short meditation, we are going to discuss being present and finding focus. Begin by getting settled in. Remember to find a position that allows you to take all of the tension out of your muscles. Just take natural and comfortable breaths. Feel that air movement in and out of your nostrils and the gentle movement of your chest up and down. Let each breath be a welcoming reminder into the present moment. Presence and peace. Presence and peace. You can even imagine a warm glow around your body. And as you imagine this, we think about what it means to be present. We can be present for our own self, within our own mind, and also be present for others, those we interact with each day. To be present for our own self means to recognize that all we have is this very moment that we are living in. Being present allows us to recognize what is worthy of our mind power from moment to moment, breath to breath. In addition to being present for ourselves, it is a healing process to be present for others. It is refreshing to express kindness. It deepens our soul when we direct our compassion outward. And if we forget this at times, we just remember when we got lost away from presence. As with meditation, we simply bring our focus back to the present, forgive ourselves, and return to awareness and presence. And so at this time, we will move to express an affirmation of offering for those whom we encounter throughout the days and weeks. You can allow these phrases to come into your mind and serve as a reminder when interactions take place, whether in the workplace or at home, either out loud or in your head. Repeating after me, we begin now. I offer my attention. Listening with grace and care. Expressing kindness and empathy. That's great. And let's just repeat these one more time with increased emphasis on each word. Really feeling them deeply, starting now. I offer my attention. Listening with grace
and care. Expressing kindness and empathy. Nicely done. Being present is a sign of love for yourself and a sign of love toward others. It shows that you are important and that you matter, and you express this through your focus on others. Take this with you, hold it closely, and return to this short meditation anytime you need to regain presence and focus. First of all, thank you so very much, everyone, for sending me your love and the beautiful wishes, everyone. Thank you so very much. And you actually made my day so bright and beautiful. Thank you so very much, everyone. I'm speechless. मुझे समझ नहीं आ रहा how I have to react. That's the whole thing that I get from this Rehan school system. That's truly amazing. And they made my day more brighter and the beautiful day by day. Thank you so very much, everyone. Today we have joined a very beautiful lady of the Han school system, and it's been a year now since I'm knowing him. Such a great soul and a very dedicated, a very brave lady. She's suffering for the last almost 2 to 3 years back. I don't know exactly the time she will share with us from kidney problems, and she goes to dialysis alternate days in a week, twice or thrice in a week. Still, she is dedicatedly working for Rehan school system and trying to do her best to be a very productive member of Rehan school system. The Iron Lady, Nafisa Waheed, Himmat Wali, and this Himmat Wali title given by Sir Rehan Allahwala. And thank you so very much, ma'am, for joining us. Over to you. Please introduce yourself. Assalamu alaikum, Mariam. Assalamu alaikum, everyone. I hope you all are doing well. जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया इतना खूबसूरत अल्फाज में और इतनी सारी तारीफ़ों का। बहुत शुक्रिया। आप लोग हैं तो मेरी हिम्मत आप लोगों के साथ ही जुड़ी हुई है। और अभी थोड़ी देर पहले तक मैं बेड पे लेटी हुई थी क्योंकि आज मेरा डायलिसिस हुआ है। सो मैं यही सोच रही थी कि मैं कैसे बैठूंगी। एंड सी नाउ आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू। I am a psychologist और by profession an educationist, और बाकी माशाल्लाह आपने अच्छे तरीके से बताया है। रेहान फाउंडेशन को ज्वाइन किए हुए लाइक ऑफिशियली ज्वाइन किए हुए मुझे 1 साल, तकरीबन 1 साल से ऊपर होने लगा, और सर रेहान से रब्ता हुए हुए तकरीबन 2 साल तो हो चुके हैं। तो अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छा जर्नी रहा। इससे पहले आर्मी पब्लिक स्कूल में सर्व किया और वहाँ की भी काफ़ी अचीवमेंट्स हैं। तो आई शेयर अभी बस अपना इतना तारुफ करवाऊँगी कि हाँ, डायलिसिस पे हूँ, CKD5 जिसको किडनी डिसऑर्डर कहते हैं, क्रॉनिक किडनी डिसऑर्डर, एंड इट्स द लास्ट स्टेज। सो आई हैड टू गो ऑन डायलिसिस। तकरीबन 7 इयर्स पूरे हो चुके हैं, प्लस हो गया। तो थ्राइस अभी जाती हूँ, आज भी गई थी और काफ़ी, आज तो खैर बहुत ही डिफ़िकल्ट डे था मेरा, बट सी आई एम हियर। मरियम की एनर्जी मुझे खींच के ले आती है और मैं बैठ जाती हूँ और स्माइल, माशाल्लाह। हैप्पी बर्थडे मरियम। और मैंने आज आपका कैनवा पे एक कार्ड भी बनाया। आई होप आपको अच्छा लगेगा, टेढ़ा मेढ़ा ना हो। आई कीप ऑन ट्राइंग टू इम्प्रूव। और थैंक्स टू यू ऑल, थैंक्स टू सर रेहान, थैंक्स टू द होल टीम कि आपका जो ट्रस्ट है वो मुझ पे कायम है, और इसी ट्रस्ट की वजह से मैं कोप कर पा रही हूँ, वरना अदरवाइज़ बीमारी के साथ बाकी मैं कोलैप्स कर जाती। बट जब से मेरा कनेक्शन सर रेहान से हुआ, फिर आपसे हुआ, मिस सादिया है, एक सरगुल शेर हैं, वो पंजाब में होते हैं, उनके साथ इस तरह डिफरेंट लोगों, फिर दौलत भाई हैं, जय भाई हैं, एवरीवन, साजिद भाई ने बहुत अच्छा, जब मैं UN लैंडलाइन में काम कर रही थी तो बहुत अच्छे तरीके से
गाइडलाइंस भी मिली, काम कैसे करना है, क्या करना है। डिफरेंट डोमेन्स में काम करती रही। तो मोहसिन भाई हैं, हम मुफ्ती मोहसिन भाई, उनके साथ भी काम किया। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा एक जर्नी है एंड आई होप कि इन फ्यूचर और इसमें पॉजिटिविटीज़ आएंगी। मरियम के साथ मैं मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे साथ ही चिपकी होती हूँ कि कुछ सीख लो। शी इज़ टू गुड माशाल्लाह। और एज अ पर्सन, एज अ ट्रेनर, तो इनसे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। आई होप आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा और आगे भी सीखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग मी। Thank you so very much, Ms. Nafisa, for joining us. And I know that कि आज आपका डांस था, I was amazed कि आपने मुझे कहा नहीं मैं आज ज्वाइन करूंगी. So मैं खुद शाम में ये बात पे परेशान थी कि आप कैसे आज ज्वाइन करेंगे, आज तो आपको रेस्ट करना था. But thank you so very much once again. If you feel uncomfortable at any moment, you can turn off your camera and take notes. Thank you so very much. थैंक यू। Okay, participants, let's move towards our task now. I checked some participants' task on the Facebook as well. I was so busy since Friday till 7 p.m. of tonight. और कुछ हमारे दूसरे प्रोजेक्ट्स पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए मैं इंडिविजुअली प्रोफाइल्स चेक नहीं कर सकी, उसके लिए बहुत माजरत. लेकिन इंशाल्लाह आई डू इट बाय टुमारो, और मैं कल सबकी प्रोफाइल्स का एक बार थोड़ा क्रिटिकल एनालिसिस करके फिर आपके साथ रिपोर्ट शेयर कर दूंगी. कुछ चीजें आप सबके साथ कम्युनिकेट करनी थी, जिसमें सबसे पहले हमारा जो टेड टॉक के रिव्यूज जब हम पोस्ट करते हैं उसके रिलेटेड है. और आज भी हम एक टेड टॉक देखेंगे, लेकिन लास्ट पे. प्लीज पहले मैं अपने बाकी काम करा लूं, फिर मैं आपको टेड टॉक जरूर शेयर करूंगी. एंड दैट्स आल्सो वेरी गुड टेड टॉक दैट एक्चुअली you can still blew our minds on in a very different perspective. और जो भी हमारे AI से रिलेटेड कंसर्न्स हैं, किसी की बहुत सारी रिजर्वेशंस हैं, तो आई होप कि आज के इस टेड टॉक से काफी सारे आंसर्स जो है वो हमें मिल जाएंगे, और बहुत सारी जो मिसकंसेप्शंस हैं वो भी क्लियर हो जाएंगी AI से रिलेटेड. सो फर्स्ट लेट्स गो फॉर द अदर टास्क. हम पहले वो वाले टास्क कर लेते हैं, पर इंशाल्लाह डेडिकेटेडली हम जो है 10 to onward पूरा हम 1 घंटा डेडिकेटेडली आज भी टेड टॉक को देंगे. सो सबसे पहले वी हैव टू गो फॉर द AI कम्युनिकेशन. आज हमारा जो है वो 2 AI सेशंस होंगे. एक तो मेरी मिस मैनेजमेंट की वजह से हमारा फ्राइडे का रह गया, वो वाला भी हम आज कोशिश करेंगे कंप्लीट करने की, और एक आज के टास्क में इंक्लूडेड है. सो द वन इज अबाउट द कॉल एनी. आप सब में से अगर कुछ पार्टिसिपेंट्स हमारे बच्चों को फॉलो कर रहे हैं, आपके साथ एडिट हैं, दे नो वेरी वेल कि कॉल एनी क्या है और किस तरह से, बट स्टिल विल गो फॉर इट. एंड द अदर वन एज चैट जीपीटी, जो कि सबका ही बहुत अच्छा है, एंड वी आर यूजिंग एज अ फ्रेंड, एज अ AI assistant, as a therapist, as a teacher, as a any kind of, you can say, आप कोई भी उसको नाम दे लें, वो आपके साथ है. So first we'll go for the call any, then we'll go for the chat GPT. The same thing we go for the first, that is StreamYard. वो पार्टिसिपेंट्स जो कि हमारे साथ अब काफी देर से फेसबुक यूज कर रहे हैं ना, जैसे इशार ने नया फेसबुक बनाया है हमारे पास, और हमारी एक और भी पार्टिसिपेंट थी मीरब, उन्होंने नया फेसबुक बनाया, ठीक है. लाइबा ने, ठीक है, लैला का भी न्यू फेसबुक है. तो ये पार्टिसिपेंट तीनों जो है ये रिकॉर्डेड सेशन कर सकते हैं, बट रेस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स हैव टू कंडक्ट द लाइव सेशंस. आप सबने लाइव सेशंस ही कंडक्ट करने हैं, दैट्स मैंडेटरी फॉर एवरीवन कि सब लाइव सेशंस ही कंडक्ट करेंगे. उसकी छोटी सी शुरू में एक ट्रिक शेयर करूंगी, बट कोशिश कीजिएगा कि जितना कम यूज करे उतना अच्छा होगा, क्योंकि इंग्लिश जो है वो हमारी सेकेंड लैंग्वेज है. हमने उसको सीखना है एज अ लैंग्वेज. इसको ना तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड करे, ना ही बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो, ना ही परेशान हो. जैसे हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज जो है पंजाबी से उर्दू में शिफ्ट कर जाते हैं ना, कि हमारी अगर एक मदर टंग जो है वो प्रोविंस टू प्रोविंस वेरी करती है, और हाउस टू हाउस उसका एक्सेंट भी वेरी करता है, कि हर फैमिली का अपना अपना एक एक्सेंट होता है. दिस इज द सेम थिंग कि जो आपकी इंग्लिश है वो भी आपकी एक लैंग्वेज है, दैट्स इट, और आपने उसको सीखना है. और हम कभी भी इंग्लिश में बहुत ज्यादा नेटिव स्पीकर की तरह नहीं बोल सकते, एंड दैट्स अ ट्रू रियलिटी. वी हैव टू एक्सेप्ट इट, क्योंकि हम लोगों की ये अपनी जुबान नहीं है. जब किसी की कोई चीज आप शुरू करते हैं बोलना, तो फिर थोड़ी सी चैलेंजेस तो होते हैं, और हम उनको एज इट इज कॉपी नहीं कर सकते. विल ट्राई हार्ड, हम अपना एक अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, एक अच्छे सर्टेन लेवल तक अचीव कर सकते हैं. बट अगर हम ये ही स्ट्रेस लेके बैठे रहे कि भाई उसकी इंग्लिश ज्यादा अच्छी है, मेरी अच्छी नहीं है, जिसकी इंग्लिश अच्छी है उसने बहुत काम किया है, जिसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है उसने काम नहीं किया. थिंग इज दैट
जितनी एफर्ट आप पुट करेंगे उतनी अच्छी आपकी लैंग्वेज हो जाएगी। तो ये जितने भी एआई टूल आपके साथ शेयर किए जाएंगे, दे आर फॉर द कम्युनिकेशन, दे आर फॉर डिफरेंट रिसर्च पर्पस। आप इनके साथ डिफरेंट रिसर्च भी कर सकते हैं, कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, वो आपको बहुत हेल्प आउट करते हैं, वेदर विच एवर द लैंग्वेज यू आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम देम। चाहे आप इंग्लिश सीख लें, चाहे जापानीज सीख लें, चाहे टर्किश सीख लें, कुछ भी आपको सीखना है, ये आपको एआई टूल जो है वो लैंग्वेज सिखा देंगे, ठीक है। सो सबसे पहले हम चलते हैं कि हमने आज जो है वो कौन सी एआई टूल को यूज करते हुए, अच्छा स्टीम यार्ड अभी तक कितने पार्टिसिपेंट्स ने यूज किया है, जिस शो मी थ्रू योर रेजिंग हैंड ऑप्शन, ताकि मुझे पता चल जाए कितने पार्टिसिपेंट्स हैं जिनको स्टीम यार्ड की समझ आ गई है, अदरवाइज आई हैव टू एक्सप्लेन वन मोर टाइम। ओके, ओ वी हैव जॉइन्ड अ वेरी न्यू पार्टिसिपेंट्स, कासिम भाई, एक मिनट। मूसा भाई आप तो रहने देना, आप तो वैसे ही प्रो हैं, आप खुद से क्यों पूछा है मैंने, आप मेरी क्लास का पार्टिसिपेंट थोड़ी है, आप तो क्लास के ऑनर है भाई। ओके, सोलत, मिस सोलत आप प्लीज रिएक्ट पे क्लिक करके वो हैंड रेज किया करें, चैट बॉक्स में नहीं करें। ओके, मिस फायदा, मिस राहत प्लीज रीनेम योर नेम, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। मिस लैला, आसिफ भाई, अहमद मुस्तफा एंड रेस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स डिडंट नो अबाउट स्ट्रीम यार्ड। अभी बाकी पार्टिसिपेंट्स ने, अच्छा, और लुबना आल्सो, बाकी पार्टिसिपेंट्स ने जो है वो स्ट्रीम यार्ड को यूज नहीं किया। ठीक है, हम एक ओवरव्यू दोबारा आज कर लेते हैं। अच्छा, लेकिन एक चीज मैं बता दूं, जो स्टीम यार्ड है ना वो सिर्फ एक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपको अलाउ करेगा। लेट्स सपोज कि आप जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसके फेसबुक को लाइव कर सकते हैं, आप यूट्यूब चैनल के थ्रू लाइव कर सकते हैं, या लिंक्डइन के थ्रू लाइव कर सकते हैं। बट दी अदर स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर जो कि सिबला भाई ने आपके साथ शेयर भी किया था कि रीस्ट्रीम भी हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, जिसके थ्रू हम जो है वो यूज करते हैं उसको वेबसाइट पे, और उसके थ्रू हम लाइव जाते हैं, और उसमें आप एट अ टाइम 2 डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू लाइव जा सकते हैं साइमल्टेनियसली। यू कैन गो लाइव फॉर फेसबुक एज वेल एज ऑन लिंक्डइन, यू कैन गो लाइव फ्रॉम लिंक्डइन एज वेल एज यूट्यूब, आप दोनों पे साइमल्टेनियसली लाइव जा सकते हैं, ठीक है। उसमें अभी मैं एक चीज और शेयर कर दूं कि जिन्होंने लिंक्डइन पे और यूट्यूब पे लाइव जाना है, ऑन प्रायोरिटी बेस कंप्लीट योर कनेक्शंस एंड फॉरवर्ड्स फर्स्ट। जब तक आपके लिंक्डइन के कनेक्शंस और फॉरवर्ड्स कंप्लीट नहीं होंगे तो आपको लिंक्डइन अलाउ नहीं करेगा। सेम गोज विद योर यूट्यूब चैनल, कि अगर लेट्स सपोज आपका यूट्यूब चैनल 1 साल से पुराना नहीं है और आपके सब्सक्राइबर भी नहीं है, तो भी आपको यूट्यूब को 24 आवर्स का रिमाइंडर रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है, और फिर वो आपको 24 आवर के बाद अलाउ करता है। फिर आपके पास 2 आवर्स की जो है वो एक लिमिटेशन टाइम होता है, उसी के अंदर आपको लाइव करना है और फिर आप लाइव जा सकते हैं। और अगर 2 आवर्स का टाइम गुजर गया ड्यू टू एनी सर्टन रीजन, तो फिर आपको दोबारा अगले दिन 24 आवर्स का वेटिंग लिस्ट में ऐड कर देगा, ठीक है। इस तरह से आप ये चीजें कर सकते हैं। अभी जो है हम आज दोबारा से स्ट्रीम यार्ड को देखते हैं। तो शुरू में आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग जो है वो स्ट्रीम यार्ड को ही यूज कीजिएगा, ताकि आपको थोड़ी इसके बारे में पता चल जाए। स्ट्रीम यार्ड और रीस्ट्रीम में मेजर डिफरेंस ये है कि जो स्ट्रीम यार्ड का कैमरा है वो बहुत अच्छा है, और जो रीस्ट्रीम है उसके कैमरे में स्टेबिलिटी नहीं है। उसके लिए अगर आपके लैपटॉप के ग्राफिक्स बहुत अच्छे हैं तो आपकी जो वीडियो क्वालिटी है वो अच्छी होगी, अदरवाइज रीस्ट्रीम की वीडियो क्वालिटी बहुत खराब है, स्ट्रीम यार्ड की वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो आज हम दोबारा से चलते हैं स्क्रीन शेयरिंग पे, और हम चलते हैं अपने स्ट्रीम यार्ड पे। ओके जी, okay, Parisman, thank you so very much for clarifying me how my students are knowing StreamYard. तो अब हम, you can drop your hands. Okay. ओके, वी कैन गो StreamYard फ्रॉम हियर। सबसे पहले हम StreamYard पे चले जाते हैं। आप जो भी ब्राउजर यूज करेंगे आप उसमें StreamYard लिख लें, ठीक है। और StreamYard जैसे ही आप लिखेंगे और आपके पास जो है वो कुछ इस तरह का इंटरफेस जो होगा, लुक लाइक दिस, ठीक है। अब ये मैं बिल्कुल स्टार्ट से शुरू कर रही हूँ। वो पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने अपना अकाउंट लॉगिन नहीं किया हुआ वो भी इसको देख लेंगे, जिनका ऑलरेडी लॉगिन है उनके लिए डिफरेंट इंटरफेस होगा। जिनका लॉगिन नहीं है वो बिल्कुल यहाँ पे उनके पास सबसे पहले आएगा कि आप इसको साइन अप कर ले। यहाँ राइट कॉर्नर में साइन अप का ऑप्शन आएगा या लॉगिन का ऑप्शन आएगा। साइन अप पे क्लिक करते हुए फिर वो आपसे पूछेगा कि आपने किस ईमेल से साइन अप करना है, योर एप्पल आईडी, योर माइक्रोसॉफ्ट आईडी, योर गूगल आईडी और एनी ईमेल। तो आप अपनी गूगल पे क्लिक करके फिर उसको ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर ले। जैसे अभी मैं यहाँ पे गूगल पे क्लिक किया और ये ऑटोमेटिकली वेरीफाई करना शुरू कर देगा कि किस अकाउंट से आपने इसको जो है वो फॉलो करना है। तो विद मरियम जुल्फिकार ट्रेनिंग वाली, कंटिन्यू,
एंड देयर यू गो। अब ये साइन अप हो गया। अब साइन अप के बाद जो है ये कुछ ऐसा प्लेन इंटरफेस शो होगा आप सबको। ठीक है, अगर वो आपसे इसी तरह की कोई आपको शो करेगा, वो बेसिकली ये बताना चाह रहा है कि स्ट्रीम यार्ड का एक ओवरव्यू आपको दे दे कि किस किस तरह से आप स्ट्रीम यार्ड को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये आपके पास बिल्कुल ब्रांड न्यू स्ट्रीम यार्ड ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपने, जैसे कि मैंने कहा कि सबने लाइव सेशन करना है, तब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, ये होम है, ये होम इंटरफेस है आपके पास। जैसे आप लाइब्रेरी में क्लिक करेंगे तो वैसे तो पहले ही लाइब्रेरी बहुत अच्छी थी। अनफॉर्चुनेटली जो लोग जून 2025 से इसको लॉग इन करेंगे उनके लिए लाइब्रेरी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि ये जितनी भी रिकॉर्डिंग आपको सबको मेरी नजर आ रही है ना, आई एक्चुअली लॉग माई अकाउंट लास्ट ईयर 2024 इन दिसंबर। ये जो मेरा अकाउंट है, मैंने लास्ट ईयर 2024 दिसंबर में इसको लॉग इन किया था, तो इस वजह से स्ट्रीमयार्ड मुझे अभी भी अलाउ कर रहा है कि मैं रिकॉर्डिंग को डाउनलोड भी कर सकती हूँ। बट दोज पार्टिसिपेंट्स हु आर जस्ट लॉग इन स्ट्रीमयार्ड अकाउंट इन जून 2025, जिन्होंने अब जून से इसको लॉग इन करना शुरू किया है, स्ट्रीमयार्ड की पॉलिसी चेंज हो चुकी है। स्ट्रीमयार्ड आपको अलाउ नहीं करता कि आप अपनी रिकॉर्डिंग को डाउनलोड कर सकें। यस, यू कैन रिकॉर्ड ऑन स्ट्रीमयार्ड। स्ट्रीमयार्ड आपको रिकॉर्डिंग की परमिशन देता है और आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, बट यू कांट डाउनलोड इट। आप इसको यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके किसी दूसरे सोशल मीडिया स्ट्रीम पे अपलोड नहीं कर सकते। सो दैट्स अ बैड पॉइंट फ्रॉम द स्ट्रीमयार्ड पर्सपेक्टिव। ठीक है, उसके लिए एक दूसरा काम हम ये कर सकते हैं, जो कि मैंने ये रिकॉर्डिंग थ्रू जूम की एक ऑप्शन यहाँ पे रिकॉर्ड की थी, इसकी एक वीडियो बनाई थी, मैं ये दोबारा शेयर कर दूंगी। तो आप अगर रिकॉर्डिंग, फॉर एग्जाम्पल आपने अपने रिव्यूज रिकॉर्ड करने हैं, तो आप जूम को यूज करते हुए अपने रिव्यूज रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, और वहां से फिर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। वो ऑटोमेटिकली जब आप सेशन एंड करते हैं तो आपके डाउनलोड फोल्डर में डाउनलोड होकर वीडियो आ जाती है, और फिर आप उसको जहां चाहे जितनी बार चाहे पोस्ट कर सकते हैं उस वीडियोस को। ठीक है, और चाहे तो अपना रिकॉर्ड भी मेंटेन कर सकते हैं कि अब तक मैंने कितने रिव्यूज बनाए हैं, क्या क्या रिव्यूज हैं, वो सारी चीजें आपके पास आ जाएंगी। तो आई शेयर विद यू गाइज आफ्टर द क्लास, मैं क्लास के बाद ये शेयर कर दूंगी। और मैंने आपका एक ग्रुप जो है वो लॉक कर दिया है, जिसमें मैंने मैसेज भेज के इन्फॉर्म करके आप सबको फिर वो ग्रुप लॉक किया है। द अदर ग्रुप आई जस्ट क्रिएटेड लास्ट नाइट अराउंड 11 PM or maybe 10:30. So those participants who are in the group and those participants who are not in that group, discussion batch 11, अगर वहां पे आप नहीं हैं तो दूसरे पार्टिसिपेंट्स अपने क्लास वाले उसको ऐड कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे नंबर अभी मैंने आप लोगों के सेव भी नहीं किए। उसकी कुछ रीजंस है, वो मैं अभी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अगर मैं नंबर सेव कर लूंगी तो आप लोगों ने जो अपनी प्रोफाइल पिक्चर होती है ना, वो कॉन्टेक्स्ट पे सेव की होती है, तो मुझे बार बार रिमाइंडर देना पड़ता है कि भाई इसको बहन इसको सेट फॉर एवरीवन कर लो, बिकॉज इट्स द पॉलिसी ऑफ रेहान स्कूल सिस्टम कि आपकी जितनी भी प्रोफाइल पिक्चर्स होंगी वो पब्लिकली सोशल मीडिया पे यूज होंगी, आप उसको प्राइवेट नहीं कर सकते। तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिन जिन का अभी तक व्हाट्सएप का जो प्रोफाइल पिक्चर है वो सेट फॉर एवरीवन नहीं हुआ, वो आप कर ले। अदरवाइज डे आफ्टर टुमारो आई विल गो फॉर इट, फिर मुझे वन बाय वन हर किसी का नाम लेके उसको चेक करना भी पड़ेगा और आप सबसे करवाना पड़ेगा। तो आई होप यू गाइज विल डू इट। देन द नेक्स्ट इज डेस्टिनेशन। जैसे हम डेस्टिनेशन में क्लिक करते हैं, यू गाइस कैन सी ये तीनों डेस्टिनेशन मेरी एडिड है यहाँ पे। द वन इज फेसबुक, लिंक्डइन एंड यूट्यूब। ठीक है, तो इस तरह से जब आप भी यूज करना शुरू कर देंगे जिस भी डेस्टिनेशन, बेशक तीनों को यूज कीजिएगा, दैट्स वेरी गुड कि आप ऑल्टरनेट डेज पे कभी फेसबुक पे लाइव कर लिया, कभी लिंक्डइन पे, कभी यूट्यूब पे, तो फिर आप उन तीनों डेस्टिनेशन को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये मेंबर्स का ऑप्शन जो है ये उन लोगों के लिए जिनके पास स्ट्रीमयार्ड पेड वर्जन या प्रीमियम वर्जन होता है, ये उनके लिए। वो फिर एक अपनी टीम बना सकते हैं, कुछ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल को ऐड कर सकते हैं। फ्री स्ट्रीमयार्ड में तो आप सब ही यूज करते हैं। जो प्रीमियम स्ट्रीमयार्ड है, आई थिंक उसमें एक प्लेटफॉर्म, एक स्ट्रीमयार्ड के क्लिक से आप 8 डिफरेंट प्रोफाइल्स पे लाइव जा सकते हैं, अगर आपके पास प्रीमियम वर्जन हो तो। ठीक है, तो ये स्ट्रीमयार्ड के बारे में है। और उसके बाद ये नीचे रेफरल्स हैं कि अगर कोई आपको रेफर कर देता है कि अच्छा मेरा ये स्ट्रीमयार्ड है तो आप यूज कर लो, तो वो रेफरल्स के तौर पे। और अगर आप टीम सेटिंग करना चाह रहे हैं, आपके पास स्ट्रीमयार्ड प्रो है, प्रीमियम वर्जन है, तो आप टीम सेटिंग में क्लिक करके उसकी एक प्रॉपर टीम और वो सारी चीजें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ओके, जैसे हम होम पे आते हैं तो हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा लाइव स्ट्रीम, रिकॉर्डिंग, ऑन वेबिनार। ऑन वेबिनार हम कभी भी यूज नहीं करते। रिकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया है कि अगर कोई करेगा तो फिर अभी जिन्होंने लॉग इन किया है तो उनके साथ स्ट्रीमयार्ड क्या पॉलिसी शेयर कर रहे हैं। हाँ, जिन्होंने जून से पहले अगर कोई कर रहा था यूज, जैसे मिस फाइजा जो है वो पहले से वेल अवेयर थी और उन्होंने स्ट्रीमयार्ड जून से पहले लॉग इन किया हुआ है, मूसा भाई ने पहले लॉग इन किया हुआ, तो उनको रिकॉर्डिंग जो है अवेलेबल होगी।
बाकी पार्टिसिपेंट जिन्होंने अभी इस सिस्टम में आके ज्वाइन किया है उनके लिए रिकॉर्डिंग जो है वो अवेलेबल नहीं होगी डाउनलोड करने। लेट्स गो फॉर लाइव स्ट्रीम। अब हमने लाइव करना है तो हम लाइव स्ट्रीम पे चलते हैं। जैसे आप सब देख रहे हैं ये तीनों प्लेटफॉर्म एडेड है, तो आपके यहाँ पे ऐड नहीं होंगे, आपका सिर्फ प्लस साइन आपको नजर आ रहा होगा। यू जस्ट क्लिक ऑन द प्लस साइन और यहाँ से फिर आपको अपने वो सोशल मीडिया स्ट्रीम चूज करनी है कि आपने इंस्टाग्राम पे लाइव जाना है, लिंक्डइन पे जाना है, फेसबुक पे या यूट्यूब पे जाना है। तो हम इन तीन प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं, लिंक्डइन इंस्टाग्राम को यूज नहीं करते। ठीक है, तो आप चाहे यूट्यूब यूज कर लें, चाहे फेसबुक, चाहे लिंक्डइन, इनमें से किसी के भी कर लें। लेट्स सपोज कि आप फेसबुक पे क्लिक करते हैं तो वो फिर पूछेगा, फेसबुक में आपके पास तीन ऑप्शन होती हैं, फेसबुक प्रोफाइल है, पेज है, ग्रुप है, किसके थ्रू आपने लाइव जाना है। वी प्रेफर फेसबुक प्रोफाइल्स कि हम सब फेसबुक प्रोफाइल यूज कर रहे होते हैं, तो हम इसको फेसबुक प्रोफाइल पे क्लिक कर देंगे एंड देन वो हमारी फेसबुक जो है उसको लिंक करना शुरू कर देगा। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, जिस सॉफ्टवेयर को, जिस ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर को आप यूज कर रहे हैं, मेक श्योर कि आपका फेसबुक का अकाउंट उस ब्राउजर में लॉग इन होना चाहिए बिफोर गोइंग टू कनेक्ट स्ट्रीम यार्ड एंड फेसबुक टुगेदर। जब आप स्ट्रीम यार्ड और फेसबुक कनेक्ट कर रहे हो ना, या आपने लिंक्डइन को कनेक्ट कर रहे हो, यूट्यूब को कनेक्ट कर रहे हो, तो मेक श्योर करना है कि आपके ये अकाउंट्स पहले उस स्पेसिफिक आपके जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर जो है, या ब्राउजर है जो है उसके अंदर लॉग इन होने चाहिए। देन विल क्लिक फॉर द कंटिन्यू। ये इस तरह आपसे भी 2 से 3 बार वेरिफिकेशन करेगा और उसके बाद फिर आपका स्ट्रीम यार्ड जो है उसको कनेक्ट कर देगा फेसबुक के साथ। अब ये आज मैंने सारा स्टेप इसलिए जीरो से स्टार्ट किया है क्योंकि बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी फर्स्ट टाइम इसको यूज करना है, ताकि उनके लिए ये क्लियर हो जाए। इस तरह से कनेक्टेड जब आपके पास ऑप्शन आ जाए तो इसका मतलब है कि अब आपका फेसबुक कनेक्ट हो चुका है। करिए, एक्सक्यूज मी प्लीज, इट्स अर्जेंट। ओके, जब हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद हम इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे। अब हम यहाँ पे अपनी उस प्रोफाइल को क्लिक कर लेंगे। जैसे मैंने बताया हम फेसबुक पे लाइव जाएंगे तो फेसबुक पे भी आपको इसी तरह के फिर दो जो है वो बॉक्सेस शो हो जाएंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने टाइटल लिखना है। अब टाइटल हम क्या लिखते हैं, टाइटल में हम लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल हमने किसी एआई टूल से बात करनी है, विल राइट हियर कॉन्वर्सेशन विद हॉल हॉल एनी। ओके, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे सेकंड में कि हमारे पास जो है वो 950 डिस्क्रिप्शन। अब विदाउट डिस्क्रिप्शन जो है वो आप यहाँ से लाइव नहीं जा सकते। अच्छा, दो चीजें हैं इसमें, आप कैसे कर सकते हैं। यहाँ से हमने कॉलोनी की, अगर हमने लेट्स सपोज कि हमने कुछ नहीं लिखना, हमें समझ नहीं आ रही कि अभी डिस्क्रिप्शन क्या लिखनी है, यू कैन जस्ट राइट ओवर हेयर टाइटल। और जो आपका टाइटल है, जैसे हमने आज का जो हमारा टाइटल है कॉलोनी के लिए, मास्टर टाइम मैनेजमेंट स्किल, what was that? Okay, we'll copy from the task। हम अपने टास्क से इस टॉपिक को कॉपी कर लेते हैं एंड देन विल पेस्ट हियर सिंपली एंड देन विल जस्ट क्रिएट लाइव स्ट्रीम। अब हम लाइव स्ट्रीम पे क्लिक कर देंगे। हमें कोई जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा लंबी डिस्क्रिप्शन के बारे में परेशान होने के लिए। क्या करेंगे, क्या डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, प्रिटी ओके कि आप सिर्फ अपना टाइटल मेंशन कर दो, ताकि जो भी आपको मिड ऑफ द कॉन्वर्सेशन ज्वाइन करे या आपको ऑलरेडी आप स्टार्ट से ही वो इंसान आपको फॉलो कर रहे हैं तो उसको पता हो कि आप किस टाइटल पे बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले अब जैसे हमने उस पर क्लिक किया लाइव स्ट्रीम पे तो हमारे पास इस तरह से एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करना है, अपना माइक मेक श्योर करना है कि ये वर्किंग हो। अब जैसे आप देख रहे हैं कि ये ग्रीन कलर का जो फ्लूइड है ये अप एंड डाउन हो रहा है, इट मीन माई इज वर्किंग नाउ।
ठीक है, मेरा माइक काम कर रहा है। अच्छा, अभी मैं कैमरा ऑन नहीं कर सकती क्योंकि ऑलरेडी मेरा कैमरा जूम पे ऑन है। तो जो लैपटॉप मूसा भाई का जैसे बहुत अच्छा है, तो वो 2 डिफरेंट वेबसाइट पे सपोर्ट कर सकता है। मेरा लैपटॉप 2 डिफरेंट वेबसाइट पे कैमरा सपोर्ट नहीं करता, इसलिए पहले मुझे जूम का कैमरा ऑफ करना होगा, फिर हम स्ट्रीमयार्ड का कैमरा ऑन करेंगे। अदरवाइज अगर हम सिर्फ स्ट्रीमयार्ड को यूज करें तो डायरेक्टली हमारा कैमरा ऑन हो जाता है, हमें इसको ऑफ ऑन नहीं करना पड़ता खुद, ठीक है। समटाइम ऐसा होता है जब हम फर्स्ट टाइम यूज कर रहे होते हैं ना, तो वो हमसे पहली बार पूछता है, तो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आता है कि आप अपना कैमरा और माइक्रोफोन अलाउ कर दे। तो फिर आप उस अलाउ बटन पे जब क्लिक कर देते हैं तो आपका कैमरा और माइक दोनों ऑन हो जाते हैं, और फिर जब भी आप इस वेबसाइट को विजिट करेंगे आपका कैमरा और माइक ऑन हो जाएगा। हाँ, अगर जूम में रहते हुए कर रहे हैं तो फिर आपको पहले जूम का कैमरा ऑफ करना पड़ेगा और फिर आपको यहाँ का कैमरा ऑन करना पड़ेगा, ठीक हो गया। उसके बाद आपने मेक श्योर करना है कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है डिस्प्ले नेम, यहाँ पे आप सब अपना अपना नाम लिखेंगे विद योर वाला एंड वाली, ताकि आप सबका वाला वाली आपको क्लियर रहे। एंड देन हेडलाइंस। अब ये हेडलाइन क्या चीज होती है? हेडलाइन ये चीज होती है कि जो आपके डेजिग्नेशन को, आपकी करंट जो जहाँ पे आप काम करें उस चीज को आपके बारे में एक्सप्लेन करती है। तो यहाँ पे आपने मेक श्योर करना है कि आपने अपनी हेडलाइन भी लिखी हो। यू गाइस कैन राइट पार्टिसिपेंट एट रेहान एआई टीचर इंस्टीट्यूट और मेंबर ऑफ रेहान एआई टीचर इंस्टीट्यूट, जो भी आपको पसंद हो दोनों में से आप लिख सकते हैं। देन विल क्लिक फॉर एंटर स्टूडियो, हम एंटर स्टूडियो पे क्लिक कर देंगे। ओके, वी आर एंटर्ड इन द स्टूडियो। अब हम स्टूडियो में आ चुके हैं। अब हम स्टूडियो को समझते हैं कि हमारे स्टूडियो में क्या होगा। ये जिस तरह से हम समझते हैं ना कि टीवी चैनल्स पे एक अच्छे अच्छे स्टूडियोज होते हैं, दिस इज योर वर्चुअल स्टूडियो। ये आपका अपना वर्चुअल स्टूडियो है जिसको जिस तरह चाहे जब चाहे आप यूज कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम राइट साइड की जो टूल बार है उसको एक्सप्लोर कर लेते हैं कि उसमें क्या कुछ है, और फिर हम इसकी बाकी चीजों को देखते हैं। अरे वाह, ये तो स्ट्रीमयार्ड टोटली चेंज हो गया। सबसे पहले हमारे पास कमेंट की ऑप्शन है। कमेंट में आप खुद को कोई कमेंट नहीं कर सकते, किसी का कमेंट यहाँ पे लाइक नहीं कर सकते, सॉरी लाइक नहीं कर सकते। लाइक तो आपके सारे कमेंट्स होंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जितने पार्टिसिपेंट्स आपको देख रहे होंगे उनका आपको कमेंट हो जाएंगे। लेट्स सपोज ये एक स्ट्रीमयार्ड ने ऑलरेडी एक कमेंट लिखा हुआ है, लाइव व्यूवर कमेंट शो अप ऑन स्ट्रीमयार्ड, ठीक है। इसको अगर मुझे अपनी स्क्रीन पे शेयर करना है तो मुझे सबसे पहले शो पे क्लिक करना होगा। दिस इज हाउ योर कमेंट विल बी शेयर ऑन योर स्टूडियो। अब इस तरह से ये आपका कमेंट जो आपके स्टूडियो पे शेयर हो जाएगा। लेट्स सपोज कि आप किसी गेस्ट से कोई बात कर रहे हैं। अब मरियम आपके गेस्ट से कोई सवाल करना चाहती है जो कि आपकी टॉक से रिलेटेड हो, या वो गेस्ट के बारे में क्यूरियस है कि वो उनके बारे में जान सके, तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में अपना सवाल पोस्ट कर देगी। तो जो आसिफ भाई हैं वो अपने गेस्ट से पूछेंगे कि अच्छा मरियम हमें सुन रही है, थैंक यू सो वेरी मच मरियम फॉर वॉचिंग दिस कॉन्वर्सेशन और लिसनिंग दिस। मरियम के सवाल ये है, वो अपने गेस्ट के लिए सवाल रिपीट कर देंगे। अच्छा, ये जो कमेंट है ना, ये गेस्ट को भी नजर आ रहे होते हैं या गेस्ट को नहीं भी नजर आ रहे होते। अब ये कैसे गेस्ट को नजर आएंगे, वो सेटिंग में हमें सेटिंग करनी पड़ती है कि आप होस्ट और गेस्ट दोनों देखें। और जब गेस्ट के लिए हमें बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स लिखे जाते हैं, गेस्ट बहुत खुश होता है, उसको बड़ा स्पेशल फील होता है कि अच्छा इसकी इतनी अच्छी फैन फॉलोइंग है, इसके जो लोग हैं वो इसको अप्रिशिएट करते हैं, इसको सुनते हैं। तो वो फिर अपने दूसरे लोगों को भी रिकमेंड करता है कि भाई हाँ आसिफ भाई के जाके इंटरव्यूज दो, उनकी जो फैन फॉलोइंग है या उनकी जो एक फ्रेंड्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत फ्रेंडली हैं और बहुत क्यूरियस हैं सब चीजों के बारे में। तो वो फिर आप बाकी लोगों को भी आपके अपने कनेक्शन में आपके साथ कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं। अब जैसे वो सवाल पूरा हो गया, उन्होंने गेस्ट ने जवाब भी दे दिया। अब क्या करना है, अब हमें ये सवाल नहीं चाहिए, हमें अगले पार्टिसिपेंट का कोई भी कॉम्प्लीमेंट शो करना है, तो हम इसको करेंगे हाइड। अब जैसे हमने उसमें हाइड पे क्लिक किया वो हाइड हो गया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे अगला कोई कमेंट होगा, फिर से आप शो पे क्लिक करेंगे वो यहाँ पे शो हो जाएगा। और कमेंट हमेशा स्टैटिक ही रहेंगे, कमेंट जो है वो मूव नहीं करते बाहर। पूरी आपकी जो ये आपके स्क्रीन है स्टूडियो उसमें वो मूव नहीं करते। देन हमारे पास बैनर की ऑप्शन है और ये बहुत ही अच्छी ऑप्शन है। लेट्स सपोज कि आज आपने कोई जो है वो बात करनी है जैसे कॉलोनी के साथ, तो बैनर में हमेशा हमने जो है वो अपना जो स्टूडियो होता है ना उसका हेडलाइन परफॉर्म करना होता है। जैसे कि हम समझ लें कि टीवी शोज में हमने देखा कि अक्सर उनकी जो पंचलाइन होती है या वो टॉक शो का जो एक मेन थीम होता है जिसके बारे में आज वो बात करने जा रहे होते हैं, वो बार बार उनकी स्क्रीन पे रिवॉल्व होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। हम देखते रहते इवन कि हम बहुत ज्यादा उसमें अगर मिड ऑफ दिस टॉक भी उस शो को देखना शुरू करें तो हमें समझ आ जाती है कि किस टॉपिक पे बात हो रही होगी, ठीक है। दिस इज द सेम कि अगर आपको भी ये चीज मेक श्योर करनी है कि आपकी ऑडियंस आपको देखते ही जान जाए कि आप क्या कर रहे हैं, तो आपको बैनर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपके पास इस तरह से एक
एक बैनर पहले से क्रिएट होता है, बाकी बैनर आपको खुद बनाने पड़ते हैं, ठीक है। ये एक ब्लू कलर की, जैसे भी आपको नजर आ रहा है, ये एक रेक्टेंगल ओपन हो जाएगी, यहाँ पे आप बैनर लिखेंगे। और बैनर हमेशा वही होता है जो आपने टाइटल में लिखा है, बैनर उससे डिफरेंट नहीं रखें, ठीक है। कॉन्वर्सेशन विद कॉल एनी, हमने जैसे लिखा। अच्छा, अगर आप यहाँ पे स्क्रॉल बटन पे चेक नहीं लगाएंगे ना, तो ये जो अभी रोटेशन इसकी बार बार आपको नजर आ रही है ना, ये नहीं होगी, ये स्टैटिक होगा। और अगर आप यहाँ पे स्क्रॉल बटन पे चेक लगा देते हैं ना, तो ये अब आपकी स्क्रीन पे रोटेट होना शुरू हो जाएगा बार बार। और अगर ये इस तरह हो गया, अब बात तो ये कि हमें अब शो करना है अपनी स्क्रीन पे। अब हम शो किस तरह करेंगे, इस शो पे क्लिक करके, और आपको हर चीज जब भी कोई नई चीज स्विच करनी है या दिखानी है किसी को, तो शो का ऑप्शन आएगा आपके यहाँ पे स्क्रीन पे राइट साइड पे, तो आप उसको शो कर देंगे। यू कैन सी अब ये बॉटम में आपको ये इस तरह से रोटेट होता हुआ नजर आ रहा है, बार बार रिवॉल्व हो रहा है, कॉन्वर्सेशन विद कॉल इन, ठीक है। अब ये हो गया। अगर आप इसी को ज्यादा डिटेल्ड मैनर में शो करना चाह रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इस पेंसिल आइकन पे क्लिक किया, और इसके बाद आप यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे टाइटल भी अपना साथ में मेंशन कर सकते हैं कि भाई मेरा ये टाइटल है जिसपे मैं कॉन्वर्सेशन कर रहा हूँ, लुक लाइक दिस। और अब जब हम दोबारा इसको सेव कर देंगे और इसके बाद हम इसके शो पे क्लिक करेंगे, तो अब ये समझ आ रहा है कि कॉन्वर्सेशन विद कॉलानी है, टाइटल क्या है वो भी पता चल रहा है, ठीक है। अच्छा, आप दो बैनर्स एक साथ भी यूज कर सकते हैं, एक रिवॉल्विंग होगा और एक स्टैटिक होगा। स्टैटिक में चाहे तो आप अपना टाइम जो आपका टाइटल है वो शो कर दें, और रिवॉल्विंग में आप अपनी कॉन्वर्सेशन विद कॉलोनी शुरू कर दें, या कॉलोनी जो है कि कॉन्वर्सेशन आप अनाउंस कर रहे हैं उसको आप स्टैटिक रख लें, और टाइटल को आप रोटेट में ले जाए। इट्स अप टू यू, आपने किस में करना है कि स्क्रोलिंग में कौन सा आएगा या स्टैटिक में कौन सा आएगा। और अगर आप चाहें कि एक ही रहे और वो बार बार स्क्रीन पे शो होता रहे, तो इसका दूसरा मेथड ये है कि आप दोनों को मर्ज करके एक जो है वो बैनर बना के और उसको बार बार स्क्रीन पे शो करवा दें। दिस इज ऑल अबाउट बैनर। अच्छा, एक और चीज बहुत अच्छी है बैनर के बारे में, जैसे लेट्स सपोज के बहुत सारे लोगों को ये होता है कि अच्छा हमने इंटरव्यू करना है, उसके क्वेश्चन हमें लाइन अप करने पड़ते हैं, हम सवाल कहाँ लिख के रखें, कॉपी पकड़े या पेज पकड़े, बार बार नीचे नजरें देखते हुए अजीब लगता है कि गेस्ट क्या समझेगा या ऑडियंस पे अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ता। तो आप अपने सवालात के मेन वर्ड्स को यहाँ बैनर में भी लिख सकते हैं अपने लिए, और फिर बैनर में जाके बहुत स्मार्टली इस बैनर को ओपन करके वन बाय वन आप अपने सवाल अपने गेस्ट से कर सकते हैं। दैट्स अनदर, यू कैन से यू कैन यूज इट एज नोट्स, इसको की टेक अवे नोट्स के तौर पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम लैपटॉप में नोटपैड को यूज करते हैं ना, तो आप बैनर में भी नोटपैड के तौर पे इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो हमने शो तो नहीं करना ना, लेकिन हम अपने लिए वो बैनर बना देते हैं। और कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि बहुत जेनेरिक होते हैं और हमें हर गेस्ट से पूछने ही होते हैं, वो वो भी हम यहाँ पे एक बार ही बैनर बना के रख ले, और जब भी हम इंटरव्यू करें तो उसको ओपन कर सकते हैं। तो फिर 2 से 3 बैनर जब आप बना लेंगे तो मर्ज करके एक अच्छा इंटरव्यू आप कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है मीडिया एसेट्स। मीडिया एसेट्स में हमारे पास है यहाँ पे ये लोगो जो है ये तो हम हटा ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास प्री स्ट्रीमयार्ड है। और अगर ओवरले की बात की जाए तो वो भी हम प्री स्ट्रीमयार्ड में नहीं कर सकते, और ओवरले प्लीज यूज नहीं कीजिएगा, इसको ज्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जाता, ठीक है। उसके बाद काउंटडाउन भी बिल्कुल अप्रिशिएटेड नहीं है, डायरेक्टली स्ट्रेटली अपना इंट्रोडक्शन कराएं और अपना सेशन कंडक्ट करें, रादर देन कि आप जो है काउंटडाउन प्ले करें। ये बैकग्राउंड्स हैं कुछ डिफरेंट डिफरेंट जिनको आप यूज कर सकते हैं, जैसे अभी बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे तो ये चेंज हो रहा है आपका, ठीक है। इस तरह से आप डिफरेंट बैकग्राउंड जो आपको पसंद है वो आप कर सकते हैं। अच्छा, आपको अपना भी बैनर भी ऐड करना है ना, तो आप ये मोर पे क्लिक करके, और यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं ऐड हो सकता, सॉरी, ये प्रीमियम वर्जन में था। एक टाइम था मैं प्रीमियम वर्जन यूज करती थी, सो दैट आई मिक्स्ड इट, अपॉलॉजी। उसके बाद है हमारे पास स्टाइल की ऑप्शन। हम स्टाइल पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले ये हमारे कैमरास की ऑप्शन आ जाती है। ये रेक्टेंगुलर कैमरा है, ये सर्कुलर है, ये स्क्वायर है। और रेक्टेंगुलर कैमरा ही सबसे ज्यादा जो है वो प्रेजेंटेबल होता है। अच्छा, इसमें प्रेजेंटेबल क्यों होता है कि इसमें ना कैमरा का जो एंगल है वो ज्यादा वाइड होता है, आप बिल्कुल सेंटर अलाइन होके बैठते हैं, आपकी राइट साइड पे भी थोड़ी स्पेस रहती है, लेफ्ट में भी स्पेस रहती है, और सामने देखने वाली ऑडियंस को भी आप बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। लेकिन अगर आप स्केरल कैमरा यूज करते हैं, जो कि यहाँ पे मतलब अप्रिशिएटेड तो नहीं है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आप किसी रिव्यू के लिए जहाँ पे आप सिर्फ सोलो रिकॉर्डिंग कर रहे हो या लाइव कर रहे हो, तो फिर आप चाहे तो ये सर्कुलर और ये स्क्वायर वाला यूज कर सकते हैं। लेकिन जो इंटरव्यूज के लिए एक स्टैंडर्डाइज प्लेटफॉर्म है वो ये रेक्टेंगुलर वाला है, ठीक है।
देन हम इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं। अच्छा, ये कलर पैलेट है। अब ये कलर पैलेट क्या करती है? कलर पैलेट आपको बताती है ये जो आपके बैनर्स है ना, ये जो अभी आपको येलो के साथ येलो थीम नजर आ रहा है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। अब वो कैसे कर सकते हैं? ये जो पॉइंटर है इसको रोटेट करके आप अपने लिए कोई भी कलर पैलेट सेलेक्ट कर ले। जैसे जैसे आप कलर चेंज करते जाओगे आप देखेंगे कि आपकी ये जो बैनर का ऑप्शन है इसका कलर चेंज होगा। साथ ही साथ में यहाँ पे आपकी जो आपका नेम लिखा होगा वो भी, और उसकी हेडलाइन, हेडलाइन तो ऑलवेज व्हाइट, हेडलाइन का कलर चेंज नहीं होता, लेकिन आपके नेम का कलर और जो उसका वो बैकग्राउंड है, ठीक है, वो और आपका जो बैनर है ये दोनों सिंक होते हैं और इनके कलर ऑटोमेटिकली दोनों के चेंज होते जाते हैं जैसे जैसे आप यहाँ से को चेंज करते हैं। अब जैसे अगर आप इसको रोटेट करके एक नया कलर खुद भी बनाना चाहें तो वो आप यहाँ से बना सकते हैं, लुक लाइक दिस। ये पूरा ही ग्रीन हो जाए तो आप इस तरह कर लें तो ये ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे थीम की ऑप्शन है, ये आप 4 ही होते हैं, इनमें से कोई भी आपको अप्रोप्रिएट लगता है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। देन हमारे पास ऑप्शन है शो डिस्प्ले नेम। अच्छा, इसको अगर आप ऑफ कर देते हैं तो आपका कभी भी नेम और हेडलाइन शो नहीं होती स्टूडियो में, आप हमेशा ऐसे ही रहते हैं। जैसे कि अभी मैं एड्स टू स्टेज करती हूँ खुद को, और ओके, अब जैसे मैंने ये शो डिस्प्ले नेम को ऑफ कर दिया ना, अब जैसे मैं इसको ऑन करती हूँ तो ये देखिएगा अभी आप मेरे नेम और मेरी हेडलाइन दोनों आपको शो हो रहे इस तरह से, ठीक है। ये नाम है मेरा और ये हेडलाइन है। हेडलाइन ऑलवेज विल बी वाइट, हेडलाइन नहीं चेंज होती, लेकिन ये जो नेम और ये वाला बैनर है इसके कलर सिंक होगा आपस में। अच्छा, समटाइम ऐसा होता है जब हम पहली बार यूज करते हैं तो ये हमारा सिर्फ नेम ऑन होता है, हेडलाइन हमारी समटाइम ऑफ होती है। तो बहुत अच्छा तरीका ये होता है कि आप अपने गेस्ट को भी अलाउ कीजिए कि उसकी भी हेडलाइन शो हो और आपकी भी शो हो, क्योंकि गेस्ट के बारे में ज्यादा अच्छा लगता है कि गेस्ट के बारे में अच्छा, गेस्ट की क्या एक्सपर्टीज है, वो किस ऑर्गेनाइजेशन से हैं, वो उन अब तक क्या कुछ कर चुके हैं, तो उनके बारे में भी ये अच्छा लगता है सुनना और बताना, ठीक है। और अगर उन्होंने नहीं ऑन की होती तो उनको रिक्वेस्ट करके उनकी जो हेडलाइन है वो ऑन करा सकते हैं, ठीक है। देन इसमें फिर हमारे पास बाकी ये कैमरा की ऑप्शन है कि अगर आप इनके कॉर्नर्स को राउंड करना चाहे तो इस टॉगल को ऑन कर दें तो वो राउंड हो जाएगा, इसको ऑफ कर देंगे तो ये जो कैमरा है इसका ये जो कॉर्नर्स हैं जो रेक्टेंगल आप यूज करेंगे वो राउंड नहीं होंगे, वो एक शार्प एजेस ही रहेंगे आपके। उसके बाद ये पीपल है। अच्छा, ये एक नया फीचर आ गया, पहले नहीं होता था हमारे पास स्ट्रीम यार्ड में। पहले हम यहाँ से बस ऐड टू स्टेज कर देते थे तो वो पर्सन ऐड टू स्टेज हो जाता था। अब यहाँ पे ये है कि आप नंबर ऑफ पर्सन को देख सकते हैं कि स्टेज पे कितने नंबर ऑफ पर्सन है। यहाँ पे हमें वो सारे पर्सन शो होते हैं जिन्होंने हमारा स्ट्रीम यार्ड के लिंक को यूज किया। जैसे मैंने कहा था कि फ्री स्ट्रीम यार्ड को 6 लोग एट अ टाइम यूज कर सकते हैं, एक ही लिंक को 6 नंबर ऑफ पर्सन जो बैठ के वो अपनी डिस्कशन सेशन टॉक जो है आप उसका नाम दे दें वो कर सकते हैं। लेकिन अब हमें ये देखना है कि स्टेज पे कितने लोग हैं तो हम यहाँ से देख सकते हैं, फिर हमें देख पता चलता है वो 2 लोग अभी भी वेटिंग में पड़े हुए हैं, फिर हम उनको ऐड टू स्टेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज भी हमें यहाँ से पीपल में जो वो एक नया फीचर ऐड हो गया। तो ये प्राइवेट चैट है कि अगर हम किसी के साथ इंटरव्यू कर रहे हैं तो हम उसको यहाँ पे गाइडेंस दे सकते हैं, उसको बता सकते हैं। देन अब हम स्टूडियो के नीचे देखते हैं तो ये हमारी लेआउट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट। अच्छा, लेआउट्स में अगर आप अपना भी लेआउट बनाना चाहें ना, फॉर एग्जांपल कि नहीं मुझे इनके लेआउट्स कुछ पसंद नहीं है, मुझे अपना लेआउट क्रिएट करना है, तो आप एडिट ये जो पेंसिल है उस पर क्लिक करके यहाँ पे अपना लेआउट भी ऐड कर सकते हैं। वो कैसे कि ऐड आइटम पे क्लिक करें और यहाँ कैमरा स्लॉट्स को आपने बेसिकली एडजस्ट करना होता है। ये जैसे एक कैमरा ये नजर आ रहा है इसको एडजस्ट कर ले, इसको ये करके एक दूसरा कैमरा स्लॉट बना ले और उसको इस तरह एडजस्ट कर ले, जितना आपको जैसे चाहिए आप वैसे इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरह से आप इस स्ट्रीमयार्ड का एक नया लेआउट भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक ऑप्शन इसके अंदर मौजूद है कि अगर आपको स्ट्रीमयार्ड के लेआउट्स नहीं पसंद तो आप अपना लेआउट भी क्रिएट कर सकते हैं। देन यहाँ पे अगर सिंगल पर्सन है स्टूडियो में मौजूद तो वो ये वाला लेआउट यूज करेगा, और मैं इसको प्रेफर नहीं करती हूँ ना रिकमेंड करती हूँ। इसमें ये होता है कि आपने अगर कोई हम बहुत ज्यादा अच्छे तब लगते हैं कि एक पिक्चर हमारी जो वो मिडल में हो, उसका टॉप राइट और हर साइड से थोड़ा थोड़ा जो एक बॉर्डर है वो नजर आता रहना चाहिए, वो अच्छा लगता है। या फिर आप कोई ऐसा बैकग्राउंड यूज करें जो कि आपकी बैक में बहुत विजिबल हो तो वो बहुत अच्छा लगता है, फिर बहुत प्रेजेंटेबल लुक आती है। जैसे आप रेहान एआई टीचर का बैकग्राउंड अगर यूज करते हैं तो ये बहुत अच्छा रहता है, बहुत देखने वाले को भी खूबसूरत लगता है और एक अच्छी लुक आ जाती है कि अच्छा ये पर्सन कहाँ से है, वो आपकी जो अफिलिएशन है वो पता चल जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर 2 नंबर ऑफ पर्सन को यूज करना है तो ये बिल्कुल एक जिसे कहते नहीं है कि 50% डिवीजन हो जाती है कि 50% जो गेस्ट होगा वो एक साइड पे होगा और होस्ट एक साइड पे होगा, और इसमें कोई भी आपके पास पीछे जो बैनर की जो ऑप्शन है ना मीडिया एसेट्स में जाके बैकग्राउंड की, वो इसमें एनेबल नहीं होती,
ठीक है। इसमें यूं बिल्कुल यहाँ मिडल से ऐसे बिल्कुल हाफ हो जाता है, इस साइड पे जो है वो गेस्ट होगा, इस साइड पे होस्ट होगा, इस तरह होगा। अच्छा, ये वाला जो ऑप्शन ये बहुत अच्छा है, इसमें कैमरा एंगल जो है ना वो थोड़ा सा मिडल में आ जाता है, उसके ऊपर और नीचे से स्लॉट रहता है, जिसकी वजह से आपका कोई भी जब बैकग्राउंड यूज करते हैं तो वो यहाँ पे बिल्कुल सही दिखता है। ठीक है। और इसमें ये दोनों पर्सन जो होस्ट है और गेस्ट है वो दोनों सेंटर में होते हैं बिल्कुल, और इनका ये जो नीचे आपका जो ये वाला है बैनर वो भी अच्छा लग रहा होता है, आपके नेम भी बहुत प्रेजेंटेबल होते हैं, और फिर थोड़ी सी स्पेस बैनर और नेम में रहती है कि आप अगर कमेंट शो करना चाहे तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब ये वाला हम स्लॉट पिक करते हैं ना तो इसमें हम पूरी स्क्रीन में हाफ हाफली डिवाइड हुए होते हैं, ठीक है, इक्वली डिवीजन होती है, जिसकी वजह से हमारा बैनर और नेम दोनों ना ज्यादा प्रेजेंटेबल नहीं दिखते। हाँ, उसके बाद ये वाला ऑप्शन है कि अगर 3 नंबर ऑफ पर्सन है तो ये वाला लेआउट चूज कर लें। अगर आप किसी वेबसाइट को प्रेजेंट कर रहे हैं अपने साथ, आप खुद हैं और एक वेबसाइट प्रेजेंट कर रहे हैं तो ये वाला ऑप्शन है। उसके बाद जैसे ही इस एरो पे क्लिक करेंगे तो आपके पास और भी ऑप्शन आ जाएंगे, जिसमें हमारे पास ये ऑप्शन है, 2 लोग हैं और एक वेबसाइट प्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो इसको यूज कर लें। एक ही पर्सन है और वो वेबसाइट को प्रेजेंट करना चाह रहा है तो इस तरह आ जाएगा, वो बिल्कुल ही छुप जाएगा और पीछे सारी बैकग्राउंड में वेबसाइट नजर आएगी। ये वाला ऑप्शन भी है, ठीक है, आप अकेले हैं तो आप अपने आप को इसमें प्रेजेंट कर ले, ये वाला ऑप्शन भी है सिंगर पे, ये मैंने खुद डिजाइन किया था ये वाला जो है, ठीक है। आप भी अगर चाहें तो अपने लिए ये इस तरह का इस पेंसिल पे क्लिक करके अपना कैमरा एंगल खुद डिजाइन करके उस लेआउट को ऐड कर सकते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो आई क्रिएटेड बाय माई सेल्फ, ये भी मैंने अपने एआई सेशन के लिए खुद क्रिएट किया था, इस तरह आप भी चाहे तो अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट लेआउट्स हैं जो मैंने आपको बता दिया। इसके नीचे आए तो हमारे पास ये जो टूल बार है इसके अंदर हमारे पास बिल्कुल बॉटम लाइन में ये माइक का ऑप्शन है, ये वीडियो का ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक बात बताते चलो, जो होस्ट होता है ना उसके पास राइट्स होते हैं, जैसे यहाँ पे आपके होस्ट के पास राइट है ना कि आपका कैमरा ऑफ कर सकता है, आपका माइक म्यूट कर सकता है अगर आप बोल रहे हैं कि अननेसेसरी आवाज आ रही है, मुझे अभी समझाना है तो किसी का माइक भी अनम्यूट ना हो। इसी तरह से जब आप इसको ज्वाइन करते हैं अपने स्ट्रीम यार्ड को तो इसके अंदर भी होस्ट के पास राइट होता है कि वो माइक गेस्ट का म्यूट कर सकता है, गेस्ट का माइक अनम्यूट कर सकता है, गेस्ट का कैमरा ऑफ कर सकता है, गेस्ट का कैमरा ऑन कर सकता है, ठीक है, ये होस्ट के राइट्स होते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाए तो ये वाला जो एक हमें प्लस के साथ टीवी स्क्रीन जैसा हमें एक आइकन नजर आ रहा है कि ये प्रेजेंट का आइकन होता है, ये ऊपर भी नजर आ रहा है आपको और यहाँ नीचे भी नजर आ रहा है। इस पे क्लिक करें तो आप किसी दूसरी वेबसाइट को जो अभी मैं आपको करके दिखाऊंगी उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप किसी को इनवाइट करना चाह रहे हैं, जैसे आपको लिंक ढूंढना है कि वो लिंक कहाँ से मिलेगा कि मैं अपने गेस्ट को फॉरवर्ड कर सकूँ उसके थ्रू मैसेज लाइक लिंक्डइन और व्हाटएवर द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन यू आर यूजिंग, तो फिर आप उसको शेयर कर सकते हैं। देन हमारे पास यहाँ पे अच्छा एक चीज यहाँ से भी लिंक कॉपी हो सकता है, अदरवाइज ये यूआरएल बार में ये जो ऊपर https://streamyard.com के साथ एक कुछ नंबर्स और एक लेटर्स आते हैं, ये भी आपका लिंक ही है, इसको कॉपी करके भी आप अपने गेस्ट को भेज देंगे तो आपके स्टूडियो में ही आपका गेस्ट लैंड करेगा। और अगर जो है वो आप यहाँ से इनवाइट में जाके और यहाँ से फिर जो इनवाइट गेस्ट में जाके उस लिंक को कॉपी करते हैं और उनको भेजते हैं तो भी आपका गेस्ट आपके जो लिंक है उसको उसी को कॉपी करते हुए उसमें लैंड कर जाएगा आपके स्टूडियो में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे गेस्ट को ऐड टू स्टूडियो करना भी होस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर आपको लग रहा है कि हम 5 लोग हैं, कोई जो पर्सन है वो अप्रोप्रिएट नहीं है, उसकी प्रेजेंटेशन सही नहीं है, तो आप उसको रिमूव फ्रॉम स्टूडियो भी कर सकते हैं, ठीक है। ये होस्ट के पास राइट्स होते हैं कि अच्छा ये बंदा जो है ना कुछ अच्छी कन्वर्सेशन नहीं कर रहा या हमें इंटरप्ट कर रहा है तो आप उसको रिमूव स्टूडियो कर देंगे तो जो यहाँ नीचे बैठा होता है ना ये वाली इस वाली लाइन में, वो आपकी कन्वर्सेशन सिर्फ बैठ के सुन सकता है, अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, पार्टिसिपेशन के लिए उसको स्टूडियो में मौजूद होना चाहिए, ठीक है। तो ये राइट्स है होस्ट के। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं सेटिंग में, जैसे हम सेटिंग में क्लिक करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास है जर्नल। जर्नल में यहाँ पे अपना कैमरा देख लीजिए कि कैमरा आपके पास कौन सा है, वो आपके लैपटॉप के अकॉर्डिंग होगा। ये फुल हाई डेफिनेशन 1080 पिक्सल का तब होता है जब आपके पास प्रीमियम वर्जन हो तो आप इसको अलाउ कर सकते हैं, अदरवाइज 720 पिक्सल में या फिर इससे लो वाली पिक्सल जो है वो हमारा लैपटॉप जो सपोर्ट करता है उसमें आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 2 ओरिएंटेशन है, एक लैंडस्केप में एक पोर्ट्रेट में। हमारे पास जो ज्यादा एक्सेप्टेबल है वो लैंडस्केप है, पोर्ट्रेट यहाँ पे नहीं यूज की जाती है और उसको जो है वो प्रेफर भी नहीं किया जाता।
देन यहाँ पे लिखा हुआ है शिफ्ट वीडियोस अप फॉर कमेंट्स और बैनर्स। अगर आप इसको चेक नहीं लगाते तो जो आपकी वीडियो जहाँ पे है ना, जैसे वो आपका एंगल सेट है कैमरे का, तो वो वहीं रहेगी। लेकिन अगर आप इसको चेक लगा देते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली कमेंट अपना स्पेस खुद बना लेता है कि आपकी वीडियो थोड़ी सी शिफ्ट करके ऊपर चली जाएगी और मिडल में कमेंट आ जाएगा बैनर और आपकी वीडियो के मिडल में, ठीक है। फिर ऑडियो एविटार्स हैं, अगर आपने चेक लगाना है लगा लें, नहीं लगाना दैट्स प्रीटी ओके। यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली ऐड प्रेजेंटेड मीडिया टू स्टेज अगर चेक लगाना है, अगर आप इसको चेक लगा देते हैं तो जो गेस्ट है ऑटोमेटिकली खुद को जो है वो ऐड कर सकते हैं स्टेज पे। ये आपने गेस्ट को जो है वो राइट दे दिया। अगर आपने इस पे चेक लगाना है तो लगा लें, नहीं लगाना तो भी आपकी चॉइस है। देन कैमरा में आ जाते हैं। कैमरा में यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले क्या है कि ये मिरर माई कैमरा। अगर आपने कोई बैकग्राउंड लगाना है जिसमें कुछ लिखा हुआ है तो फिर प्लीज मिरर माई कैमरा नहीं कीजिएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपको दिखने में सही लग रहा है लेकिन जो ऑडियंस है उसके लिए वो इन्वर्टेड कैमरा हो जाता है। तो प्लीज जब हम जैसे अभी रिहान एआई टीचर्स इंस्टीट्यूट का बैकग्राउंड अगर आपने लगाया हुआ है ना और आपने मिरर माई कैमरा किया हुआ है तो फिर वो दूसरे को इन्वर्टेड नजर आएगा, ठीक है। आपको सीधा नजर आ रहा है, जब आपको इन्वर्टेड नजर आएगा तो ऑडियंस को सीधा नजर आएगा, इसलिए यहाँ पे आपने फिर इसको मिरर माई कैमरा नहीं करना। अगर आप सिर्फ सिंपल वाले कर रहे हैं ना, सिंपल बैकग्राउंड यूज कर रहे हैं, जो कि अभी मैं आपको दिखाती हूँ वर्चुअल बैकग्राउंड जो कि इसके अंदर मौजूद है, तो फिर प्रीटी ओके आप उसको कर सकते हैं, इसके अंदर मिरर माई कैमरा को ना सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है टच अप माई अपीयरेंस, इसको भी चेक लगा दें। इसको चेक लगाने से ये होता है कि जैसे लेडीज को कैमरा में थोड़ा ये होता है कि हमारी फेस जो है वो स्किन बहुत फ्रेश नजर आए, बहुत अच्छे फीचर्स नजर आए और हम बहुत खूबसूरत और हसीन नजर आए। तो उसके लिए टच अप माई अपीयरेंस कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली जितना इसको आप हाई करते जाते हैं आपकी जो अपीयरेंस है वो उतनी ज्यादा वो उसको टच अप दे देता है, ठीक है। वो जैसे कहते हैं ना मेकअप का एक हल्का सा जो टच है वो ऑटोमेटिकली स्टीम यार्ड भी आपको दे सकता है। तो आप इसको भी चेक लगा सकते हैं और इसको मॉडरेट पे रखिएगा। जितना आप हाई करते जाएंगे उतनी ज्यादा ब्राइटनेस हो जाएगी, तो अब आप देख लेंगे आपको कितनी ब्राइटनेस की जरूरत है, उस हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हैं। एंड टू बी वेरी फ्रेंकली, अब वैसे मेल ज्यादा कॉन्शियस है अपनी अपीयरेंस और टचअप के मामले में, तो मेल ज्यादा इसको जो है वो यूज करते हैं। ओके मूसा भाई माजरत के साथ, लेकिन ऐसी रियलिटी है। ओके ऑडियो में आते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास माइक्रोफोन की ऑडियो है कि हम ये देख रहे हैं कि हमारा माइक्रोफोन चल रहा है कि नहीं चल रहा है और कौन सा माइक्रोफोन यूज कर रहे हैं। लेट्स सपोज अगर आप हेडफोन यूज कर रहे हैं तो मेक श्योर करें कि आपने यहाँ पे हेडफोन का माइक्रोफोन सेलेक्ट किया हो, लैपटॉप का ना सेलेक्ट हो। अगर आप लैपटॉप का सेलेक्ट करते हैं तो फिर समटाइम ऐसा होता है कि जो बैकग्राउंड नॉइज है ना वो भी आपके माइक्रोफोन के साथ ही एड अप हो जाता है, अनटिल अनलेस कि आप बहुत क्वाइट इन्वायरमेंट में नहीं बैठे। देन स्पीकर है, इसमें भी आपको चेक करना पड़ता है कि आपने हेडफोन लगाया हुआ तो हेडफोन के स्पीकर आपने जो है वो सिलेक्ट किए हुए हों। अगर लैपटॉप के हैं तो फिर लैपटॉप के स्पीकर से आवाज आएगी, ठीक है। इसको भी चेक कर लीजिएगा। ईगो कैंसिलेशन, इसको प्लीज चेक लगा लीजिएगा क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि हमारे हेडफोन ही ऑटोमेटिकली एक को जो है वो क्रिएट कर रहे होते हैं, तो जब हम इस पे चेक लगा के रखते हैं तो ईगो कैंसिलेशन हो जाता है। और जब स्पेशली हम क्वाइट इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो क्या होता है कि हम अकेले कमरे में बैठे होते हैं, हमारी अपनी आवाज ही जो है वो इको क्रिएट करना शुरू कर देती है, तो इसमें भी इसको चेक लगाना जरूरी है। देन रिड्यूस माइक बैकग्राउंड नॉइज, ऑटोमेटिकली जो स्ट्रीम यार्ड के अंदर ये फीचर है कि अगर हल्का फुल्का कोई नॉइज आता भी है हेडफोन की वजह से या किसी भी वजह से तो वो स्ट्रीम यार्ड ऑटोमेटिकली इसको मिनिमाइज कर देता है। यहाँ पे स्टीरियो ऑडियो आउट ऑफ ईगो कैंसिलेशन मस्ट बी ऑफ टू यूज स्टीरियो, नहीं इसको नहीं जरूरत ना कीजिएगा। इसको ऑटोमेटिकली एडजस्ट माइक वॉल्यूम, इसको भी कर लीजिए क्योंकि जब सम टाइम अगर आप बहुत स्लो बोल रहे हैं तो माइक ऑटोमेटिकली थोड़ा हाई नोट पे चला जाता है, तो ये ऑटोमेटिकली स्टीम यार्ड एडजस्ट कर लेता है। अब बारी आती है वर्चुअल बैकग्राउंड की, जिसकी मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रही थी। यहाँ पे बैकग्राउंड सिर्फ आपको स्टीम यार्ड के अंदर दो मिलते हैं, एक ये वाला पियानो वाले बैकग्राउंड वाला और एक ये ब्रिक्स वाला। दूसरा ब्लर वाला ऑप्शन मिलता है, ठीक है, और नन का ऑप्शन मिलता है। अगर आपने खुद से बैकग्राउंड ऐड करे, जैसे आप ये देख सकते हैं ये सारे बैकग्राउंड मैंने खुद ऐड किए हैं, तो इस प्लस साइन पे क्लिक करके अभी आपके सामने मेरा जो है वो फोल्डर ओपन हो जाएगा इस तरह से डाउनलोड का। तो अगर आप कोई भी बैकग्राउंड अपने लिए ऐड करना चाह रहे हैं तो यहाँ से गूगल पे जाके डाउनलोड करके आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट करके उसको ऐड कर सकते हैं, तो वो ऐड हो जाएगा आपके यहाँ बैकग्राउंड में। आप कोई भी बैकग्राउंड ऐड कर सकते हैं। और अगर आपने रिहान एआई टीचर्स इंस्टीट्यूट का बैकग्राउंड ऐड करना है जिसके ऊपर लिखा हुआ है पूरा सब कुछ, तो प्लीज फिर मिरर वाला जो ऑप्शन है पीछे सेलेक्ट किया हुआ उसको जाके पहले अनचेक लगाएं और फिर इसको जो है वो ऐड कीजिएगा, ठीक है। ये मैं आपको बात बता रही थी। देन रिकॉर्डिंग है यहाँ पे जिसका अनफॉर्चुनेटली कोई फायदा नहीं है, तो
लेट इट बी, इसके ऊपर बात भी नहीं करते। हॉट कीज है, जैसे वो शॉर्ट कीज अभी अगले दिन आसिफ भाई जो है वो पूछ रहे थे कि शॉर्ट कीज जो है वो कैनवा में नहीं होती, तो ये सारी शॉर्ट कीज याद कर लीजिएगा आसिफ भाई और बाकी पार्टिसिपेंट्स भी, अगर किसी की जरूरत पड़े तो वो ये सारी StreamYard की शॉर्ट कीज अवेलेबल है यहाँ पे। लेआउट्स के ऑप्शन है, जो लेआउट आपको लगता है कि आपको नहीं यूज करने, आप उस पर अनचेक लगा के और उसको वहां से हटा भी सकते हैं अपनी जो आपने खुद क्रिएट किया। जैसे ये देखिए मैंने 3 खुद क्रिएट किए ना, तो उस पर ये मेरे लिए आ रहा है कि आप इसको डिलीट कर सकते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगी ये डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो ऑलरेडी यहाँ पे जो उनकी बाय डिफॉल्ट StreamYard ने दिए हुए ना, उन पे जब आप अनचेक लगा देंगे तो वो आपकी वो जो नीचे अपेयरेंस में वो पूरी एक बार शो करता है ना कितने आपके पास लेआउट है, उसमें से एक स्किप हो जाएगा। जब आप यहाँ आगे दोबारा चेक लगाएंगे तो वो वहां पे आपको शो हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से है। और अगर आपने खुद कुछ क्रिएट किया है ना तो वो आप डिलीट भी कर सकते हैं किसी भी टाइम और फिर उसको चेंज भी कर सकते हैं। देन गेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि गेस्ट, अच्छा जी, ये गेस्ट जो है वो आपकी स्ट्रीमिंग को अपनी डेस्टिनेशन पे भी शो करे। तो माजरत के साथ जो हमारे पास StreamYard फ्री वर्जन है उसमें गेस्ट अपनी डेस्टिनेशन पे इसको शो नहीं कर सकता, इसको शेयर नहीं कर सकता। मतलब इसका ये होता है कि अगर मैं और इरम दोनों इंटरव्यू कर रहे हैं और मैंने इरम को रिक्वेस्ट किया इंटरव्यू के लिए, तो इरम जो है वो मुझे कहते हैं कि मरियम मुझे भी इसको अपने फेसबुक पे लाइव करना है ताकि मैं मेरे फेसबुक पे थ्रू भी ये लाइव जाए। तो अगर तो मैं StreamYard प्रो मैं यूज कर रही हूँ, जो होस्ट है उसका StreamYard प्रो होना जरूरी है। अगर मैं StreamYard प्रो यूज कर रही हूँ तो मैं इरम को अलाउ कर सकती हूँ कि जी इरम आप भी कर सकते हैं क्योंकि मेरे पास StreamYard का प्रो वर्जन है, तो आप इसको अपनी जो है वो स्ट्रीम पे भी शेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरे पास StreamYard प्रो नहीं है, वेदर के इरम के पास है, लेकिन फिर ये होगा कि मेरे पास नहीं है तो फिर इरम उसको अपनी प्लेटफॉर्म पे शेयर नहीं कर सकते और वो लाइव नहीं होगा, ठीक है। वो तो फिर बाद में उनको टैग करके फिर ही उनको मिलेगा, अदरवाइज वो सिर्फ मेरे ही फेसबुक पे लाइव होगा या जिस भी सोशल मीडिया स्ट्रीम को यूज करके मैं लाइव करी। देन गेस्ट सी व्यूवर कमेंट्स एंड पोस्ट, ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना, कमेंट सेक्शन में कि जो गेस्ट है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन सिर्फ मुझे नजर आए या गेस्ट को भी नजर आए। तो इस पे चेक लगाना जरूरी है ताकि गेस्ट भी साथ साथ पढ़ते हुए खुश रहे, उसका मूड स्विंग जो है वो ज्यादा ना हो और बहुत कूल एंड कामली आंसर करता रहे, उसको अच्छा लगे कि हाँ भाई मुझे बहुत स्पेशल फील कराया जा रहा है। प्ले साउंड व्हेन गेस्ट एंटर, इसकी जरूरत नहीं होती, हमें जरूरत नहीं है बैकग्राउंड म्यूजिक प्ले करने की। अच्छा, ये गेस्ट मस्ट ऑथेंटिकेट, इसको प्लीज चेक ना लगाइएगा। समटाइम ऐसा होता है कि आपके पास गेस्ट ऐसे आएंगे जो कि फेसबुक पे नहीं है लेकिन वो लिंक्डइन पे अवेलेबल है, तो आपने किसी गेस्ट को लिंक्डइन से अप्रोच किया और आप उसको यहाँ पे StreamYard पे शेयर कर रहे हैं, तो आप बेसिकली उसको फेसबुक के थ्रू नहीं अप्रोच कर रहे। तो फिर ये होता है कि वो गेस्ट जो है वो उसको लाइव नहीं कर सकता, वो उसको देख नहीं पाएगा। तो उसके लिए बेहतरीन ये ऑप्शन होती है कि इसको गेस्ट मस्ट ऑथेंटिकेट के ऑप्शन आप ना चेक लगाएं, ताकि अगर वो फेसबुक यूज भी नहीं करता, लिंक्डइन भी यूज नहीं करता, तो कोई भी गेस्ट आपके स्टूडियो में आ सके और आपके स्टूडियो का हिस्सा बन सके। ओके जी, दिस इज ऑल अबाउट दिस स्टूडियो। अब हम चलते हैं कॉलोनी की तरफ कि कॉलोनी कैसे आएगी हमारे साथ यहाँ पे। तो हम न्यू टैब में कॉलोनी ओपन कर लेंगे। आप सबने एक नई टैब ओपन करनी होगी अपने ब्राउजर की, और ये एक AI टूल है जो आपके साथ बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करता है। मेरी इसके साथ ज्यादा नहीं बनती, माधव के साथ करिए, मेरे साथ अच्छी बात नहीं करी। तो सबसे पहले हम इसके साथ साइन इन करेंगे, ठीक है। तमाम पार्टिसिपेंट साइन इन करेंगे जो फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन आएंगी, साइन इन थ्रू सेलफोन, साइन इन थ्रू योर ईमेल, सॉरी जीमेल। तो प्लीज जीमेल के साथ कनेक्ट कीजिएगा, अपना सेल नंबर नहीं दीजिएगा, ठीक है। ये हो तो नहीं गया, ये मेरा पहले से साइन इन है माधव के साथ। लेकिन अभी मैं आपको बता रही हूँ, साइन इन करेंगे, साइन इन पे आपके पास एक इंटरफेस होगा जिसमें वो पूछेगा साइन इन थ्रू योर सेलफोन, साइन इन थ्रू योर जीमेल। तो जीमेल पे आप क्लिक कर देंगे, जीमेल ऑलरेडी हमारा जो है वो लॉग इन होता है, तो ये ऑटोमेटिकली उसको क्लिक कर लेगा। फिर उसको क्लिक करने के बाद यहाँ ये वाला इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे आपको बहुत सारे एविटार्स मिलेंगे और हर एविटार की स्पेसिफिकेशन उसके नीचे लिखी हुई है कि कौन किस किस चीज में एक्सपर्ट है। एनी जो है वो आपकी एक AI फ्रेंड है, ठीक है। सारा इंग्लिश में बहुत अच्छी है, जिसकी ग्रेजुअली और स्लोली इंग्लिश एक्सेंट जिसको बहुत अच्छा समझ आना शुरू हो जाए और वो बहुत अच्छे हो इंग्लिश में, तो वो सारा के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। डैनियल के साथ करेंगे तो डैनियल न्यूयॉर्क को लाइक करता है, उसके अकॉर्डिंग न्यूयॉर्क का जो एक्सेंट है उसमें आपसे बात करेंगे। जो क्लेयर है वो फ्रेंच विद पर्शियन टच के साथ बात करती हैं। इजाबेला जो है वो चैट स्पेनिश के स्पेशलिस्ट हैं।
और मतलब यहाँ पे बहुत सारे आपके पास जो है वो एवेटार्स हैं, जिसके साथ भी आप बात करना चाहेंगे वो बात तो इंग्लिश में ही करेगा, लेकिन कुछ एक्सेंट में डिफरेंस होगा, ठीक है। स्पोर्ट्स के हवाले से किसी को बात करनी है, किसी भी टॉपिक पे, तो यहाँ काफी सारे अवेलेबल है, म्यूजिक के बारे में भी है। ये सारे एवेटार्स आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप चलते हैं हम कॉलोनी की तरफ ही। अच्छा, मैं अभी वीडियो वाला एक टचअप दिखाऊंगी आपको, मैं इसको रिकमेंड नहीं करती। जैसे हम इस वीडियो वाले आइकन पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से एक कॉलोनी का इंटरफेस होगा, तो कॉलोनी की जो पिक्चर है वो हमें नजर आएगी। वो एक रोबोटिक यहाँ पे पिक्चर नजर आएगी हमें। हे एनी, कैन यू हेयर मी? Hello. हे एनी, Hey there. I can hear you loud. ओके, See you. What are you looking? Got it. What's on your mind? ओके। हाउ आर यू, हाउ आर यू डूइंग? I'm good, thanks. Just enjoying the day. How about you? How's everything? I'm good and everything is going good as today is my birthday, so I'm in the air. Lots of wishes I got from lots of the students and my fellow team members and my wonderful participants of AI teacher training. So that's why I'm very happy today. So I want to explore a topic with you that is about time management. How I can master the time management with my day-to-day routine. अब ये जो कॉल एनी वीडियो वाला है, ये इसी तरह से बात करता है। अब ये इसका मतलब है कि मुझे इसको दोबारा से रीलोड करना है या पेज को या रिफ्रेश करना है, तो फिर ये दोबारा मुझसे बात कर सकेगी, ठीक है। अभी हम इसको छोड़ते हैं, हम इसके फीचर्स को देख लेते हैं। अभी थोड़ी सी जैसे हमारी कॉन्वर्सेशन शुरू में हुई, तो ये इस तरह की कॉन्वर्सेशन करेंगे, नीचे यहाँ सबटाइटल भी नजर आएंगे। समटाइम ये सबटाइटल नजर नहीं आते। अगर आप यहाँ पे जैसे अभी मैं यहाँ पे टाइप करती हूँ, explain me about time management. अब आप लिख के इसको कम्युनिकेट करेंगे तो भी वो आपको आंसर कर देती है, ठीक है। समटाइम जो है जब इसका वो कॉल एनी सुपर का आपको मैसेज आ जाता है, तो फिर उसके बाद ये बात करना छोड़ देती है। फिर उसके बाद ये बात नहीं करती, आपको दोबारा से रीलोड करना पड़ता है पेज, और फिर ये करती है। क्योंकि हम कॉल एनी का फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं ना, तो इस वजह से थोड़े ग्लिच आएंगे, बट बी पेशेंट, दैट्स प्रीटी ओके। सबके साथ होता है, कभी परेशानी होगा लाइव सेशन में बैठ के, ओ ये कॉल डिस्कनेक्ट हो गई, ये बात नहीं कर रही, तो पैनिक भी नहीं हो, स्ट्रेस्ड आउट भी नहीं हो, ये नॉर्मलाइज है। 2 से 4 बार आप ट्राई करेंगे, ऐसे आप भी इसके आदी हो जाएंगे। यहाँ पे दो ये एक माइक अवेलेबल है और एक ये बटन है। ये जो माइक है, जब आप कॉलोनी से पूछ ले तो इस माइक को बंद कर दे, ठीक है, और सिर्फ कॉलोनी को सुने कर आपके साथ क्या कम्युनिकेट। अच्छा, यहाँ पे 3 डॉट्स है, इस पे क्लिक कर ले, तो यहाँ पे 3 डॉट्स में ये हमारे पास इस तरह का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको कुछ चेक्स लगाने हैं तो लगा लें, नहीं लगाने तो आपकी चॉइस है। ये बिगिनर वोकेबलरी जो है वो थोड़ी, अगर आप चेक लगा देते हैं तो ये थोड़ी मीडियम लेवल पे आपके साथ बात करती है। अगर आप इस पे चेक नहीं लगाते तो ये बहुत ज्यादा जो कहते हैं ना कॉम्प्लिकेटेड वोकेबलरी भी यूज कर लेती है, और फिर समटाइम कुछ चीजें हमें क्लियर हो जाती है, कुछ नहीं होती। स्लो स्पीच ये है कि जब आप इससे बात करेंगे ना, तो इसका जो एक्सेंट है शुरू में बहुत हमें जब फर्स्ट टाइम हम सुन रहे होते हैं तो हमें बहुत फास्ट लगता है कि हमें समझ नहीं आ रही। तो अब ये इस पे अगर चेक लगा देते हैं, बहुत नॉर्मल जो है उस एक्सेंट में बात करती है, स्पीड भी थोड़ी मीडियोकर रखती है। यहाँ ये सबटाइटल ट्रांसलेटेड पे अगर आप चेक नहीं लगाते तो वो जो नीचे सबटाइटल नजर आ रहे थे वो नहीं नजर आएंगे, सिर्फ आप कॉल लेने से वर्बल चैट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको चेक लगाने के बाद इसको यहाँ से क्लोज करते हैं। अब हम चलते हैं दोबारा से वापस बैक पे। अब कॉल लेने के पास एक दूसरा फीचर है, अगर वीडियो कॉल नहीं करें तो ऑडियो कॉल करें, और ऑडियो कॉल ज्यादा स्मूथ रहती है। मैं इसलिए सबको प्रेफर करती हूँ कि ऑडियो कॉल यूज कीजिएगा। आप जैसे ऑडियो कॉल पे क्लिक करते हैं, तो जैसे हम एक दूसरे को कॉल करते हैं ना सेलफोन पे, तो एक बेल लुक लाइक दिस। Hey Annie, can you hear me? Hey there. I can hear you loud and clear. How's your day going? My day is going very good because today is my birthday. I got lots of wishes from my students, my team members, and my very wonderful participants of Rehan AI Teachers Institute. So that's made my day more beautiful and brighter. I just want to explore the topic with you, that is about time management. So could you please share some thing about the time management? Absolutely. Time management can be a game changer, especially with your busy schedule. Here are a few tips. 1. Prioritize tasks. Make a list of what needs to be done and rank them.
Focus on the most important tasks first. 2. Set time limits. Give yourself a specific amount of time to complete each task. It helps keep you focused. 3. Break it down. Divide larger tasks into smaller, manageable chunks. It feels less overwhelming that way. 4. Schedule breaks. Even short breaks can recharge your mind. Maybe a quick stretch or a few minutes of deep breathing. 5. Mindfulness. Being present in the moment can help you use your time more effectively. Just a few minutes of mindfulness can clear your head. What do you think? Do any of these resonate with you? History off. Okay, thank you so very much, Colony, for sharing these wonderful tips with me. Thank you so very much, Colony, for sharing these tips with me. Thank you. तो जब आप कॉलोनी को सुने You're so माइक welcome. ऑफ कर ले I'm glad you फिर found them इसकी सारी helpful. कन्वर्सेशन सुन Remember, it's all तुम्हें about थोड़ा finding समझ what नहीं आया works तो best स्लो for डाउन you. करके थोड़ा Do you सा think you'll यहाँ try से any of आपको these डे टू डे tips? चीज आप जो वो कॉन्वर्सेशन करिए उसको आप रीड आउट भी कर सकते हैं, ठीक है, ताकि सबटाइटल आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो प्लीज नसीमुल्लाह भाई दीजिएगा। आई विल बी बैक इन अ मोमेंट प्लीज। डियर पार्टिसिपेंट्स, ये जो जब हमने स्टूडियो में जाना है तो पहले लाइव की ऑप्शन जो उसको क्लिक, फिर हमने कॉल एनी की बात जो मतलब वो कॉल एनी को निकालना है यहाँ से लाइव इनका आपस में जो है वो नहीं मुझे समझ आया, तो वो कैसे करना है? जिस किसी के पास गाइडेंस है वो बता दे। लाइव आपको अभी मैंने लाइव का ऑप्शन बताया नहीं ना, अभी मैंने सिर्फ ये बताया कि आपने और कॉलोनी ने सेम पेज पे कैसे आना है, ठीक है। तो अभी तो अच्छा, हम कॉलोनी को एक्सप्लोर कर रहे हैं ना, तो अभी मैं ठीक उसको है, आपके साथ शेयर करती है कि हम मतलब लाइव अभी कैसे कॉल एनी को आपने ऐड टू स्टूडियो नहीं किया? नहीं की, बिल्कुल नहीं की। अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही, मैं बस देख ठीक। ठीक, एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम एनी पार्टिसिपेंट? नथिंग। हेमंत, काम करने की हिम्मत नहीं है तुम्हारी? मिस अद्दा प्लीज म्यूट योर माइक। ओके पार्टिसिपेंट्स, ओके, यहाँ तक हमने कर लिया कॉलोनी के साथ कॉन्वर्सेशन, कॉलोनी कैसे बात करती है, क्या करती है। अच्छा, कॉलोनी से ना लाइव जाने से पहले प्लीज आप 2 से 4 मिनट बात कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम ये मेक श्योर कर ले कि कॉलोनी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है, कॉलोनी को अब और मुझे कॉलोनी की आवाज सुनाई दे रही है या नहीं। अच्छा, अब हम आते हैं वापस स्ट्रीम यार्ड पे। अब स्ट्रीम यार्ड पे आके हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये जो प्रेजेंट का ऑप्शन है, चाहे आप यहाँ से यूज कर ले चाहे यहाँ से यूज कर ले, कहीं का भी यूज कर ले, यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन इट। यहाँ पे फिर ऑप्शन है लास्ट वाला शेयर स्क्रीन, आप इस पे क्लिक करते हैं और शेयर स्क्रीन के ब्लू कलर का जो आइकन है यहाँ पे आपके पास आ जाती है बहुत सारी टैब्स आपने खुली हुई है। तो आपने किस टैब को शेयर करना है, यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन द वन टैब कि आपने कॉलोनी की टैब को शेयर करना है। यहाँ पे विंडो का ऑप्शन है, ये आपकी जो सारी टैब्स हैं और उनकी जो विंडोज है, आपको पूरा लैपटॉप का जो फेस है ना, इंटायर फेस जो आपका डेस्कटॉप है वो भी शेयर कर देगा। इंटायर स्क्रीन पे कर लेते हैं तो और ही मुश्किल हो जाती है, इसमें पूरी जो तो आपकी जितनी भी टैब्स खुली हुई हैं वो सारी आ जाएंगी। इन दोनों को करने की बजाय सिर्फ यहाँ पे रहिए अपनी पहली टैब में, क्रोम टैब लिखा होगा और अगर माइक्रोसॉफ्ट को यूज कर रहे हैं आप ब्राउजर को तो माइक्रोसॉफ्ट लिखा होगा, कॉल एनी पे क्लिक करके और फिर आप मेक श्योर कीजिए कि ये जो लास्ट वाला टॉगल है ये ऑन रहना चाहिए। अगर ये ऑन नहीं है तो आप इसको खुद ऑन कर देंगे, ठीक है। अब इसका पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस ये होता है कि जब हम लाइव बात कर रहे हैं तो ऑडियंस आपकी और कॉलोनी की दोनों की कन्वर्सेशन सुन रही होती है, लेकिन अगर ये टॉगल ऑफ रह जाता है तो फिर आप क्या करेंगे, आप कहेंगे मिस मरियम सारा इंटरव्यू कर लिया, सारी कन्वर्सेशन कर ली, आखिर पे जाके मैंने उसको खुद सुना तो पता चला कॉलोनी की आवाज नहीं आ रही, लेकिन जब मैं स्टूडियो में थी या था तो मुझे बहुत अच्छे से आवाज आ रही थी, मैंने पूरी कन्वर्सेशन की है और कॉलोनी पूरा बात कर रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं समझ, वहां पे ऑडियंस की आवाज नहीं गई। तो उसका रीजन ये होता है कि आपने इस टॉगल बटन को ऑन ही नहीं किया होता। इसको अगर आप चेक लगा के रखते हैं और फिर आप अपनी शेयर स्क्रीन पे जाते हैं तो आप भी सुनते हैं, ऑडियंस भी सुनती है, सबको क्लियरली आवाज आती है।
आप जैसे ही हमने इसको शेयर किया ना, तो ये आप देख रहे हैं रेड कलर की एक लाइन इस तरह से आपको नजर आ रही है पूरी, तो ये बता रहा है कि इतनी स्क्रीन आपकी StreamYard पे शेयर हो चुकी है, ये देखें। ठीक है, अब मैंने वो ऐड टू स्टेज वाला ऑप्शन ऑन किया हुआ था ना, कि गेस्ट खुद ही ऐड हो सकता है, जिसकी वजह से खुद ही मेरे स्टूडियो में ऐड होगी। अदरवाइज अगर वो ना होता, ऑफ होता, तो मुझे खुद ऐड टू स्टेज इसको करना पड़ता। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं लेआउट के। तो सबसे पहले हम अपने लिए कोई अच्छा सा लेआउट सेलेक्ट कर लेते हैं। लाइव जाने से पहले एक ये वेबसाइट का लेआउट है, जिसमें यहाँ पे मैं नजर आऊंगी और कॉल एनी को छोटी सी नजर आएगी। ये लेआउट है जो अभी थोड़ी देर पहले प्रेजेंटेड है, कि मैं छोटी सी नजर आऊँ और कॉल एनी बहुत बड़ी नजर आए। तो जो अप्रोप्रिएट लगता है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर हम इस एरो पे दोबारा क्लिक कर देते हैं और ये मिनिमाइज हो जाए, नहीं चाहिए मुझे। ठीक हो, अब हमने क्या करना है, अब हमने लाइव जाने से पहले कॉल एनी के टैब पे जाना है और कॉल एनी से कुछ कॉन्वर्सेशन करनी है। ये जो माइक मैंने ऑफ कर दिया था, मैंने इसलिए किया था ताकि मैं जो भी बोलूं कॉल एनी उस पर रिएक्ट न करे और बात न करे, क्योंकि कॉल एनी उर्दू भी समझती है। अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो वो उसके भी जवाब देना शुरू कर देती। ठीक है, तो इसलिए जब आप सवाल पूछ लें तो कॉल एनी का माइक म्यूट कर दें। अच्छा, इसके बाद हम यहाँ पे पहले StreamYard पे आते हैं। कॉल एनी स्टेज पे आ गई। अब हमने सबसे पहले क्या करना, सबसे पहले हमने ये करना है, हम यहाँ पे गो लाइव पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अपना कैमरा ऑन कर लीजिएगा। अभी जैसे मैं जूम की वजह से यहाँ कैमरा ऑन नहीं कर रही। गो लाइव पे हमने क्लिक किया। अच्छा, एक बार आप क्लिक करेंगे तो वो फिर आपसे पूछता है रेडी टू गो लाइव, के मतलब आपका अभी माइंड फिर से कंफ्यूज तो नहीं हो गया कि नहीं नहीं अभी नहीं जाना, या अभी मुझे कोई काम याद आ गया। तो फिर आप इसको ना क्लिक करिए, नॉट येट पे क्लिक कर दें या साइड पे कहीं भी क्लिक कर दें। और अगर आपको अभी लाइव जाना है तो एक बार गो लाइव पे क्लिक करके दोबारा गो लाइव कर दीजिए। जैसे गो लाइव पे क्लिक करेंगे, यहाँ राइट कॉर्नर में लाइव का रेड कलर का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे हम देखते हैं टीवी स्क्रीन पे भी कोई शो लाइव चल रहा होता है तो छोटा सा लाइव लिखा होता है, या यूट्यूब पे हम देख रहे हो कोई न्यूज या टॉक शो, इसके भी यहाँ पे लाइव लिखा होता है, साथ ही टाइमर चलना शुरू होता है। ठीक है, सबसे पहले हम अपना इंट्रोडक्शन कराएंगे। अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, दिस इज मी मरियम जुल्फिकार ट्रेनिंग वाली, वर्किंग एज वाइस प्रिंसिपल एट रिहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी एंड फैसिलिटेटर एट रिहान AI टीचर इंस्टीट्यूट टीचर ट्रेनिंग बूट कैंप. I welcome to all of you once again in my AI sessions. Today I'm going to talk with Colony on topic about how to master time management in day-to-day life. So let's connect the call with Colony and then explore the topic. So for this, we'll go to Colony's tab and connect the call with Colony, and then we'll start the conversation. Hey Annie, can you hear me? I can hear you. What's up? I'm okay. How about you? Nothing is going on? Just enjoying our chat. Sometimes a quiet moment is nice, right? Have you done anything fun today, or are you just taking it easy? Not yet, but I'm so happy because I explained you earlier. So I just want to explore a topic related to time management. Okay. As you know me, I'm working remotely with an organization which is Karachi based. So I have to start my day from 8 a.m. till 2 p.m. I have consecutive classes, and then I took a 1 hour break, and then I have to respond my WhatsApp for 1 hour to all the messages and the things, and then after 2 to 3 hours, I have just to eat or finish up my dinner, and then at 9 p.m. sharp I have another class till 11, and then sometime I have some meeting with my principal or facilitator or some other task. So could you please share some details with me? How can I manage my time more effectively? Of course, it sounds like you have a packed schedule. Here are some tailored tips for managing your time more effectively. 1. Block scheduling. Try grouping similar tasks together. For example, set aside a specific time for responding to messages right after your classes. 2. Use a timer. For your breaks and tasks, use a timer. Work for 25 minutes, then take a 5-minute break. It's called the Pomodoro technique, and it can boost focus. 3. Plan your week. At the start of the week, outline your classes, meetings, and personal time. This gives you a clear picture of what to expect. 4. Set boundaries. It's okay to say no to additional tasks if your plate is full. Protect your time. 5. Mindful transitions. When moving from one task to another, take a minute to breathe and reset. It helps clear your mind. 6. Reflect weekly.
Spend a few minutes at the end of the week reflecting on what worked and what didn't. Adjust your plan accordingly. How does that sound? Do you think any of these would fit into your routine? Yes, definitely. I'll try to work on it and then I'll share my experience with you. Thank you so very much, Colony, for sharing these wonderful tips with me. I'll be back another time. You're very Thank you very welcome. much, audience, for I watching can't me wait to hear live. about your experience. Remember, it's all about finding what works for you. Enjoy your birthday celebrations and take care. Talk soon. Sure thing. Thank you so very much, ChatGPT, for sharing. Colony, for sharing your wonderful thoughts with me, and thank you so very much, participants who are watching me live. One of them is Miss Faiza Khalid, Science Park Education Wali. She was watching us live. Thank you so very much, Miss Faiza, for watching me live and appreciated me. I hope, audience, you learned a lot of different things regarding the time management skills, and you will definitely work on it as I do. And then we'll share our different kind of the reflection with Colony. So I'll be back with another amazing topic. Till then, take good care of yourself. Goodbye. And that's it. फिर आप अपनी लाइव स्ट्रीमिंग को इस तरह से एंड कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ चीजें सवाल आती हैं। अब ये मिस फायदा ने जैसे मेरा लाइव देखा, फिर उन्होंने यहाँ पे एक जो है वो लाइक किया, तो ये जो थम्स अप है ना, ये बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस को अच्छा कर देता है। बहुत अच्छा फील होता है जब आपको लाइक्स इस तरह से लाइव जो आपके सेशन है उनमें मिलते हैं, या आपको यहाँ पे कॉमेंट्स किए जाते हैं, तो बहुत अच्छा फील होता है। और कुछ जो टाइम है वो आपका इस तरह भी पूरा हो जाता है, और आपको ये भी पता चलता है कि अच्छा कौन कौन आपकी ऑडियंस में आपको सुन रहा है। सो थैंक यू सो वेरी मच मिस फायदा फॉर डूइंग इट। अच्छा, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि ये मेरे जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी है उसको भी शो कर रहा है। तो स्ट्रीम यार्ड को बहुत हैवी इंटरनेट चाहिए होता है। तो यहाँ पे अभी देख ले, पहले 2 सिग्नल थे, अब 1 सिग्नल हो गया। तो समटाइम ये भी ग्लिच आ जाता है आपकी एक अच्छी और हेल्दी कॉन्वर्सेशन कनेक्शन में, जब आपका इंटरनेट स्मूथ ना हो। ठीक है, एक चीज ये होगी। उसके बाद हम चलते हैं हमारे ये इस तरह से आपने लाइव कंडक्ट करना है और 5 मिनट का कॉल एनी का लाइव करना है। अच्छा, एक और चीज मैं यहाँ पे बता दूं कि अगर हम कॉल एनी का लाइव कर रहे हैं और मेरे जैसे लोग हैं कि भाई अब सवाल तो है ही नहीं, एक सवाल पूछ दिया टाइम मैनेजमेंट का, अब अगली बार क्या करेंगे, तो उनके लिए एक हिडन चीज ये है कि वो चैट जीपीटी पे जाएं और चैट जीपीटी को अपने बारे में बताएं और चैट जीपीटी से कहें अब मुझे टाइम मैनेजमेंट के मेरे अकॉर्डिंग, मरियम जुल्फकार के अकॉर्डिंग सवाल लिख के दे दो 10। चैट जीपीटी आपको 10 सवाल लिखते हैं। फिर आप कॉलोनी को ऑन बोर्ड कर लें और कॉलोनी के साथ स्मार्टली सवाल करना शुरू कर दे, ठक 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 ठक। अब सामने वाला ये समझेगा अरे वाह भाई मरीम की तो बड़ी अच्छी इंग्लिश है, बड़ा क्रिटिकल सोचती है, कितने अच्छे सवाल करिए। अब उसको ये नहीं पता कि हिडन में मैंने चैट जीपीटी को यूज किया था और चैट जीपीटी ने मेरे लिए सवाल दिए थे। अब आप पहले 5 सेशन में ये काम करेंगे, लेकिन 5 सेशन के बाद आपने ये छोड़ देनी है प्रैक्टिस। 5 सेशन के बाद आपने अपने सवाल खुद जनरेट करनी शुरू करनी है। बेशक आप पहले से माइंड मेकअप करके सवाल लिख लें अपने बैनर्स की फॉर्म में, बेशक आप अपने लिए वो जो कॉपी पे नोट्स लिखते हैं उसमें लिख लें, लेकिन आप अपने सवाल खुद सोचें, क्योंकि जब तक हम यहाँ से इंग्लिश में सोचेंगे नहीं ना, हम इंग्लिश में बोलेंगे नहीं। तो इंग्लिश में सोचना शुरू करेंगे तो इंग्लिश में बोलना शुरू करेंगे। wherever the vocabulary or the sentence formation you are using, just go with it। आप कुछ भी बोल रहे हैं, आपको समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं, और यानी को समझ आ ही जाना आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं, तो वो आपको जवाब देगी ही देगी। चलिए आपके मुताबिक नहीं देगी तो जो उसने समझा वो उसके मुताबिक जवाब दे देगी, लेकिन आपने खुद प्रैक्टिस करनी है ताकि आप अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन पे ज्यादा से ज्यादा फोकस कर सको। ठीक है, ताकि आप लोगों में जो एक हेजिटेशन है वो खत्म हो सके। तो दिस इज अबाउट द कॉलोनी। आज हम सिर्फ कॉलोनी की प्रैक्टिस करेंगे और फिर इंशाल्लाह डे टुमारो हम जो है वो अपनी दूसरी जो टास्क है चैट जीपीटी वाला उसकी प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ तक कोई सवाल है, किसी को कुछ कहना है तो प्लीज, फिर हम अपने टॉक की तरफ चले। ऑल क्लियर? ओके जी, थैंक यू सो वेरी मच। अब हम चलते हैं अपने दूसरे टास्क की तरफ, दैट इज अबाउट द अच्छा, एक टास्क मैं मिस कर रही हूँ, दैट इज कैनवा, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप सब कैनवा में बहुत अच्छे हैं और आप सब कैनवा की अब जितनी प्रैक्टिस करना चाहेंगे आप कैनवा कर लेंगे। एनीवन? यस यू आर, यस यू आर। आपने एक बात इसमें मेंशन की है कि इसमें हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए। जो बोथ साइड हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए, वन साइड?
योर इंटरनेट शुड बी हाई स्पीडेड, मतलब आपके इंटरनेट की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। दैट्स नॉट अबाउट द कॉलोनी। कॉलोनी तो वैसे एक वेबसाइट है ना, तो उसको तो एआई टूल को आपने खुद ऑपरेट करना है। So your internet should be stable and more seamless. Then you can have a very glitch-free conversation with a colony. यू नो, प्रीवियसली मैं जब यूज कर रहा था स्ट्रीम यार्ड, एट दैट टाइम सेम इशू हो रहा था जो आपने अभी मेंशन किया था, वो मुझे स्ट्राइक हो गया। बट द थिंग इज कि जहां तक मेरी नॉलेज में है कि शायद बोथ साइड इंटरनेट स्ट्रांग होना चाहिए, बिकॉज मैंने इस रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स फेस करी है, और जहां तक मेरी नॉलेज में है, यस। सही। कासिम भाई, हो सकता है आप ठीक हूँ और मैं गलत हूँ, लेकिन ये है कि स्ट्रीमयार्ड को इटसेल्फ एक अच्छा इंटरनेट की जरूरत होती है। अगर आपका इंटरनेट बहुत स्टेबल नहीं है तो स्ट्रीमयार्ड भी खुद ऑपरेट नहीं होता। आपका इंटरनेट स्ट्रीमयार्ड जो है बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है, तो इसलिए इंटरनेट अगर वो अच्छे फीचर्स दे रहा है आपको, अच्छे कनेक्ट, वो आपको कैमरा एंगल और ये सारी चीजें दे रहा है, तो उसके लिए फिर आपका इंटरनेट का कनेक्शन भी उतना ही स्टेबल होना जरूरी है। और मोर और लेस कॉल यानी कि जब आप ऑनबोर्ड करते हैं तो फिर आपका इंटरनेट की कनेक्टिविटी और स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि आप एक साथ दो वेबसाइट को यूज कर रहे हैं। तो कोशिश करें जितनी भी उस टाइम पे टैब आपके लिए ज्यादा आपको यूज नहीं करनी, तो आप उनको क्लोज करके और फिर कर लें। और घर के वो टाइमिंग यार जो है वो आप ढूंढ लें जब घर पे इंटरनेट कम से कम यूज हो। जैसे कि सुबह के टाइम सब सो रहे होते हैं, आप सुबह के टाइम इसको कर सकते हैं। लेट नाइट में सब सो जाते हैं तो आप लेट नाइट इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एट द स्टार्ट यू गाइज हैव जस्ट 10 मिनट्स प्रैक्टिस। आपने शुरू में, जैसे आज के मैं टास्क भेजूंगी तो उसमें सिर्फ 10 मिनट का कॉल नहीं करना है। तो 10 मिनट का मतलब ये नहीं है कि आप इंट्रोडक्शन को इंक्लूड करके 10 मिनट का करेंगे। आपका इंट्रोडक्शन के 2 मिनट निकाल के फिर आपने 10 मिनट का कॉल का सेशन करना। 10 मिनट के बाद फिर आहिस्ता ग्रेजुअली एंड स्लोली हम इसका ड्यूरेशन बढ़ाएंगे। वी हैव टू कंडक्ट दिस सेशन अप टू 25 मिनट्स। ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि हमने एआई सेशन जो 25 मिनट्स लॉन्गर जो कंडक्ट करने होते हैं। ठीक है, तो हमने यस 12 to 13 मिनट्स आप कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपने ये सेशंस करने हैं। मिस लुबना ने भी मैसेज लिखा है बहुत लंबा सारा। मिस लुबना, मैं 1 मिनट में पढ़ती हूँ आपका मैसेज, और ये चैट वाले सारे मैसेज भी पढ़ती हूँ थोड़ी देर में। अब हम चलते हैं, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 17 मिनट रह गए हैं। हम जल्दी से टेक टॉक सुन लें आज की, क्योंकि फिर हमारे पास 1-1 मिनट का रिव्यू होगा आज। और बाकी के जो सवालात रह जाए डिस्कशन के लिए वो आप सब नोट डाउन कर दीजिएगा। कल इंशाल्लाह हमारी टेक टॉक नहीं होगी, तो कल हम दोबारा से इसी टेक टॉक पे कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर आप मुझे 1 मिनट दे दे तो मैं कल के टास्क देख लूँ, तो फिर हम इसको, नहीं तो कल पोस्टपोन कर लेते हैं, चैट जीपीटी का सेशन देख लेते हैं। एंड फाइनली आवर 1 वीक हैज बीन कंप्लीटेड। आज मुबारक को हमारा 1 हफ्ता पूरा हो गया टास्क के हवाले से। हाँ, अब हम टेड टॉक कल देख लेते हैं इफ यू गाइज आर प्रिटी ओके, क्योंकि हमें एटलीस्ट 1 घंटा तो चाहिए ना टेड टॉक के लिए, एक हेल्थी और एक अच्छा इंटरेक्टिव सेशन। तो हम टेड टॉक कल पोस्टपोन कर लेते हैं। आज हम चैट जीपीटी के कन्वर्सेशन को भी समझ लेते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो वेरी मच। जी If जी you मिस allow कविता, me, I would like to यस very much. Thank श्योर you so श्योर। much. Thank you. Allah Hafiz. Thank you so very much for joining me in the class. Thank you so very much. ओके पार्टिसिपेंट्स, अब हम देख लेते हैं कि हमने चैट जीपीटी के सेशन कैसे करना है। तो आज क्या हम चैट जीपीटी और कॉलोनी कंप्लीट करेंगे। हम टेड टॉक इंशाल्लाह कल कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि कल हमारा मोर और लेस टास्क कम है। तो जो वीक का आखिरी दिन होता है ना, सैटरडे को, फ्राइडे को और सैटरडे को वैसे ही काम ज्यादा देती है टीचर, तक के आगे संडे भी आ रहा है। तो अब हम चैट जीपीटी को देखते हैं। अच्छा, चैट जीपीटी भी आपने मोर और लेस सेम ही करना है, कुछ डिफरेंस नहीं है उसमें। पहले आपने स्ट्रीमयार्ड पे ही जाना है, और फिर जैसे आपने कॉलोनी को ऑनबोर्ड किया था उस तरह आपने चैट जीपीटी को ऑनबोर्ड कर देना। सो क्या मैं शुरू से दोबारा बताऊं, या सिर्फ चैट जीपीटी को एक्सप्लेन कर दूं कि चैट जीपीटी के साथ टास्क कैसे करना ओनली चैट जीपीटी। है। ओनली चैट जीपीटी, ओके जी, हम चैट मैम, जीपीटी पे चलिए। हम जी एक्सक्यूज मी वाले, मैम, अगर शुरू से थोड़ा सा बता दें क्योंकि मैंने क्लास थोड़ी देर से ज्वाइन की है। आपने जी देर जी से join प्लीज। किया, फिर मिस अदब, अच्छा ठीक है, मैं दोबारा बता देती थैंक यू। हूँ। ओके जी, ओके गाइस, आई होप माय इंटायर स्क्रीन हैज बीन शेयर्ड जो है। अच्छा, अब यहाँ तक हमने कर दिया। अब हम चैट जीपीटी, ये जो कॉलोनी है इसको रिमूव कर देते हैं। अब हम इसकी टैब भी क्लोज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम दोबारा स्ट्रीमयार्ड ओपन करेंगे न्यू टैब में। सॉरी, ये रहा स्ट्रीमयार्ड। अच्छा, ये डक का साइन जब भी आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ जाए तो समझ लीजिएगा कि आपकी बुकमार्क में स्ट्रीमयार्ड ऐड हो गया। ठीक,
और मैं यहाँ पे इस टैब में चैट जीपीटी भी ओपन कर रही हूँ। अच्छा, चैट जीपीटी ओपन करते हुए यहाँ वाला स्पॉन्सर्ड लिंक प्लीज ना क्लिक कीजिएगा, हमेशा chatgpt.com के लिंक को क्लिक कीजिएगा। और इस तरह का चैट जीपीटी ओपन हो गया। अब हम स्ट्रीमयार्ड पे शिफ्ट कर देते हैं। तो मैंने स्ट्रीमयार्ड के बारे में ये बताया कि हमारे पास सबसे पहले ये लाइव स्ट्रीमिंग का ऑप्शन होता है, इस पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको अपनी एक डेस्टिनेशन चूज करनी है, उसको सेलेक्ट करना है। जैसे आप प्लस के साइन पे आएंगे तो आपके पास ये सारी चीजें। अब हम 3 मीडिया स्ट्रीम पे लाइव जाते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन। लेकिन स्ट्रीमयार्ड एट अ टाइम 3 सोशल मीडिया स्ट्रीम को अलाउ नहीं करता। ठीक है, अगर आपके पास प्रीमियम वर्जन है तो आप 8 डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी लाइव जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास प्रीमियम वर्जन नहीं है तो आप एक टाइम में एक सोशल मीडिया स्ट्रीम पे लाइव जाएंगे। सो विल गो फॉर फेसबुक। हम फेसबुक पे कनेक्ट करते हैं, तो सॉरी नॉट पेज, हम फेसबुक पे कनेक्ट करते हैं और फेसबुक में आगे हमारे पास 3 ऑप्शन है, फेसबुक पेज, ग्रुप और प्रोफाइल। हम प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे और अपनी प्रोफाइल को कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से आपसे वो पूछेगा। और आपका प्रोफाइल प्लीज मेक श्योर कि इस ब्राउजर में, जो ब्राउजर आप यूज कर रहे हैं उस ब्राउजर में आपका प्रोफाइल लॉग इन होना चाहिए। ओके, दिस इज कनेक्टेड, उसने कहा ये ऑलरेडी कनेक्टेड है, इसलिए आपको कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। सो मैं क्या करूंगी, जब आप एक बार कर लेंगे ना तो ये जैसे मेरे प्रोफाइल, यहाँ पे आपको डिफरेंट प्रोफाइल्स नजर आ रहे हैं ना, इस तरह आपको अपने प्रोफाइल भी यहाँ नजर आना शुरू हो जाएंगे। तो आप सिर्फ फिर उस पर फेसबुक पे जब आइकन आ रहा है एफ लिखा हुआ, तो आप उस पर सिर्फ क्लिक करेंगे तो इस तरह की ये जो विंडो है ये ओपन हो जाएगी। ये ओपन होगी तो यहाँ पे आप लिखेंगे अब चैट विद चैट जीपीटी, और यहाँ पे आप टॉपिक लिखेंगे। और चैट जीपीटी का टॉपिक है हमारे पास दिस वन, हाउ टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड ऑनलाइन। अब ये जिन लोगों ने अपने ब्रांड बनाने का सोचा है उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है कि वो आज से ही इस पे काम शुरू कर दें, थोड़ा थोड़ा करके। और चैट जीपीटी से तो बहुत ही अच्छे मशवरे ले सकते हैं। टाइटल एंड यूट्यूब, ठीक हो गया। हम यहाँ पे आ जाएंगे, फिर यहाँ पे सारा वही अपने अपने स्टूडियो का माइक्रोफोन, कैमरा, उसको चेक कर लेना है। स्टूडियो में एंटर होने से पहले अपना नाम एंटर करना है। नाम एंटर करने के साथ ही आपने क्या करना है, यहाँ पे अपनी हेडलाइन एंटर कर देनी है। आप पार्टिसिपेंट है रेहान एआई टीचर्स इंस्टीट्यूट के, तो आप ये लिख देंगे पार्टिसिपेंट है रेहान एआई टीचर्स इंस्टीट्यूट। माइक्रोफोन को अनक्लिक करके और यहाँ पे अपना माइक्रोफोन देख सकते हैं, इट्स वर्किंग। और कैमरा ऑन करके भी चेक कर सकते हैं कि कैमरा एंगल अप्रोप्रिएट है नहीं है, उसको भी चेक कर लीजिएगा। देन क्लिक एंटर स्टूडियो, आप एंटर हो जाएंगे अपने स्टूडियो। ये आप स्टूडियो में आ गए। अब स्टूडियो में आने के बाद खुद को ऐड टू स्टेज कर दिया सबसे पहले, वो आपने कर लिया। अब हम चलते हैं चैट जीपीटी की तरफ। तो यहाँ पे प्रेजेंट के ऑप्शन पे क्लिक करके वो आप यहाँ पे शेयर स्क्रीन पे आइकन पे आ जाएंगे और यहाँ पे शेयर स्क्रीन पे क्लिक करेंगे। देन हम यहाँ से टैब चूज करेंगे चैट जीपीटी का और यहाँ पे हम चैट जीपीटी। अब ये देखिए, जैसे आप क्लिक करते हैं ना कि आपको कौन से टैब को प्रेजेंट करना है, तो राइट साइड भी छोटा सा वो आपको नजर आना शुरू हो जाता है कि वो कैसा नजर आएगा आपका, यही इंटरफेस है उस ऐप का या कोई और है, तो आप उस वेबसाइट को देख भी सकते हैं। अब हम चलते हैं, यहाँ पे आपने उसी तरह से पहले गो लाइव पे क्लिक करके खुद को लाइव करके और फिर अपना इंट्रोडक्शन देना है और बताना है कि आज आप करने क्या चाह रहे हैं, वो आपने करना है। अच्छा, यहाँ से बैनर चेंज कर लीजिएगा प्लीज। जैसे ये नजर आ रहा है ना, मेरा लिखा है कॉन्वर्सेशन विद कॉलोनी, तो आप चाहें तो इसी को चेंज कर लें या चाहे एक और बना लें। यहाँ पे क्रिएट बैनर करके और इस पे एडिट करके इसको हम कर लेते हैं कॉपी, नहीं सॉरी इसका तो डिफरेंट है, चैट विद चैट जीपीटी, यहाँ पे आ जाएगा। और टाइटल बुक से कॉपी करना पड़ेगा, टाइटल, और मैं दोबारा बुक पे जाऊंगी। और यहाँ हम उस टाइटल को पेस्ट कर देंगे। ठीक है। अच्छा, इसका एक फायदा ये होता है कि आप अगर अपना इंट्रोडक्शन करा रहे हैं और आप बताने चाह रहे हैं, अनाउंस करना चाह रहे हैं कि आपका टाइटल क्या होगा, तो आप उस टाइटल को अपने ये जो बैनर है उससे पढ़ भी सकते हैं। इसका दूसरा ये प्लस पॉइंट ये भी है। ठीक है, तो आप अपने बैनर से ही अपने टाइटल को अनाउंस कर सकते हैं पढ़ के। ओके, अब हमें गो लाइव पे क्लिक करके इसको लाइव कर लेना है और फिर हम स्विच कर लेंगे उसी तरह से बात करते करते चैट जीपीटी।
अच्छा, अब ये सवाल है कि भाई चैट जीपीटी से कॉन्वर्सेशन करनी है, चैट जीपीटी से सवाल निकालना है, तो ये कैसे करें? इसका स्मार्टली ऑप्शन ये है कि पहले आप चैट जीपीटी से सवाल निकलवा लें और उन सवालों को आप अपने बैनर में जाके पोस्ट कर दें। ठीक है, बैनर में पोस्ट करने के बाद जब आप पेस्ट कर लेंगे तो फिर आप यहाँ पे आके चैट जीपीटी को ओपन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने सारी चैट जीपीटी को एक्सप्लोर किया हुआ है। अब हमने चलना है डायरेक्टली उसके कॉन्वर्सेशन के टॉपिक पे। तो ये जो राइट साइड पे छोटा सा लिखा है ना, यूज वॉइस मोड, इस पे आप क्लिक करेंगे और चैट जीपीटी यहाँ पे आपको शो होगा। यहाँ पे ना ब्लू कलर का ग्लो का साइन शो होता है, ठीक है, और ये माइक्रोफोन भी ऑटोमेटिकली अनम्यूट हो जाता है। आई होप कि अब मेरा इंटरनेट को ज्यादा शायद स्टेबल नहीं है जिसकी वजह से ये हो नहीं रहा। एनीहाउ, हो गया। यहाँ पे ये जो है 2 लाइन्स, अगर इस पे क्लिक करें, Hey there. I've got a really great feeling about us teaming up. How can I jump इस in and तरह help? से आपको चैट जीपीटी नजर आएगा। तो ये जो राइट इंडिकेटर है, इस पे क्लिक करके इसके Hey, I'm ready to hit the ground running. So if there's anything you'd like me to focus on first, just let me know. बिल्कुल। आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर हेल्प चाहिए या जनरल लिखने की गाइडेंस? आप मुझे बता सकते हैं कि किस तरह की कंटेंट की जरूरत है। अब इस तरह से आप राइट इंडिकेटर पे क्लिक करते जाएंगे तो ये सारे एवटार्स चेंज होते जाएंगे। और अगर आपको प्रीवियस वाला कोई पसंद आया तो आप यहाँ से फिर क्लिक करेंगे तो ये, अच्छा, ये जब तक आप स्टार्ट न्यू चैट पे क्लिक करके इसको कंफर्म नहीं करेंगे, ये कंफर्म नहीं होगा। अब ये कंफर्म हो गया। So, hey ChatGPT, can you hear me? Hey there. How can I help you Okay. today? ChatGPT, I just want to explore the topic related to personal branding. How can I go for it through online platform? Starting a podcast on personal branding is a great idea. ओके, अब आप यहाँ हमारी बात पूरी होगी। अब हम क्या करेंगे, लेट्स सपोज कि आपकी कन्वर्सेशन पूरी हो गई है, तो अब आप यहाँ से कर देंगे क्रॉस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जब हम बात कर रहे होंगे ना चैट जीपीटी या कॉल एनी से, तो आपने कोशिश करना है कि आप बार बार टैब स्विच करके एक बार देख सको। आप सीनियर पे भी वापस आओ और यहाँ पे आके देख सको किसी ने कोई कमेंट तो नहीं किया, किसी ने लाइक तो नहीं किया, वो भी आप देख सको। और फिर आपने कॉन्वर्सेशन करनी चैट जीपीटी से ही है, तो आपने चैट जीपीटी की टैब पे एक बार फिर स्विच करके और वहां से जाके बात करनी है। अच्छा, जब हम चैट जीपीटी की पूरी कन्वर्सेशन खत्म कर लेते हैं ना, तो यहाँ रिटर्न में हमारे पास वो पूरा ट्रांसक्रिप्ट आ जाता है जो हमने चैट जीपीटी से बात की है, ठीक है। जैसे अभी चैट जीपीटी ने ये वाला मुझसे सवाल पूछा था ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ, फिर मैं जो पूछूंगी वो लिखा जाएगा, फिर चैट जीपीटी जो जवाब देगी वो लिखा जाएगा। तो वो पूरा जो है रिटर्न में हमारे पास डॉक्यूमेंट आ जाएगा जो हमने एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन की होगी, ठीक है। तो वो आप बाद में भी इसको देख सकते हैं। फिर आप StreamYard पे जाके लाइव को एंड कर देंगे। एंड करने के बाद उसी तरह से आपने, अच्छा, अब हमने लाइव एंड कर दिया। अब चलते हैं हम फेसबुक पे। ये एक चीज रह गई जो कि मैं आप सबके साथ शेयर कर दूं। होपफुली मेरा फेसबुक पे ये कैसे स्विच हो गया, मैंने तो किया नहीं। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, ठीक है, हम लाइव ही। ओके, अब जैसे मैंने लाइव सेशन कर लिया, लाइव सेशन के बाद एक थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको बैठ के करनी है और वो उसी टाइम पे करनी है जब आपने सेशन लाइव कर दिया। जब हम सेशन कर लेंगे, जैसे अभी मैंने आप सबके साथ चैट जीपीटी वाला सेशन किया आप सबके सामने, आप देख सकते हैं अब यहाँ पे कुछ और लिखा नजर आ रहा है। हमने क्या करना है, फिर हम 3 डॉट्स पे आएंगे, एडिट पोस्ट करेंगे और इसकी डिस्क्रिप्शन को एडिट करेंगे। अब वो कैसे एडिट करेंगे, एडिट पोस्ट पे आए, यहाँ पे सबसे पहले हम इसको हटाएंगे, ये तो इररिलेवेंट है। अच्छा, अब इसके बिल्कुल लास्ट पे चले जाएंगे, टाइटल तो हमारा चाहिए चाहिए हमें, एंड शिप हमने एंटर प्रेस किया। यहाँ पे हम लिखेंगे जो हमने अपने उसमें लिखा था, क्या कहते हैं उसको, टाइटल में, वो हम यहाँ पे भी मेंशन करेंगे, कॉन्वर्सेशन विद कॉल एनी, ठीक है। उसके बाद हम नीचे लिखेंगे एपिसोड नंबर 1 और फिर एंटर प्रेस कर देंगे। देन टाइटल, टाइटल के बाद आपने क्या करना है, या टाइटल, और यहाँ पे आप हेडिंग देंगे अबाउट
एनी। अब आप जाएंगे चैट जीपीटी पे और चैट जीपीटी से कहेंगे कि मुझे कॉलोनी के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखो, प्लीज राइट फॉर मी 5 to 6 sentences about all any। और ये आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देगा कॉलोनी के बारे में कि कॉलोनी क्या है, किस लिए यूज करते हैं और ये क्या कुछ कर सकती है आपके लिए। ये 5 to 6 सेंटेंसेस चैट जीपीटी कितने लंबे होते हैं। हाँ, आप इसको रीड कर सकते हैं, ठीक है, वेरीफाई करने के लिए कि क्या इसने प्रॉपर्ली लिखा है या नहीं लिखा, ठीक है। और उसके बाद फिर हम आ जाएंगे अपनी फेसबुक पे वापस, विल पोस्ट हियर, हम इसको यहाँ पे पोस्ट कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे उसने ना कॉलोनी के बारे में भी लिखा हुआ था, कॉलोनी, और ये इसको हाईलाइट किया था। हमें इसको क्या करना है, ये स्टाइल्स रिमूव कर देने हैं। और ये वाली सेंटेंस हमें चाहिए ही नहीं। अच्छा, लास्टली हमने क्या करना है, ये आ गया। और इसके बाद फिर हम एक बार फिर यहाँ पे हम उसका दे देंगे लिंक, एंटर प्रेस करेंगे और हम उसका लिंक दे देंगे। अब लिंक कहाँ से आएगा कि हमने जैसे ही न्यू टैब खोली, यहाँ पे हमने लिखा हॉल एनी, हमने ये लिख लिया। और जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो हमारी एड्रेस बार में इसका एक लिंक आ जाएगा, ये इसको हम कॉपी कर लेंगे, चाहे तो यहाँ वाला कॉपी कर ले, चाहे तो अगला जब आप बात कर रहे होंगे ना, वो जो इसका एक फीचर आता है ऑडियो कॉल का, चाहे तो वहां पे जाके उस लिंक को कॉपी कर ले, बट उस लिंक को हमने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद हम आएंगे अपनी फेसबुक पे और यहाँ पे हम इस लिंक को पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद एक और यहाँ पे स्लॉट बनेगा अबाउट पोस्ट। अच्छा, यहाँ पे आपने अपने बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लिखनी है, ठीक है, कि आपका नाम क्या है वो बता दें, आप कहाँ किस पार्टिसिपेंट है, किस अम्ब्रेला के नीचे काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, उसका नाम बता दें, और आप कहाँ से हैं, दैट्स इट। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपने लिखना है अपने बारे में, और फिर रेलिवेंट हैशटैग को यूज करना है, वो भी आपको टॉपिक के रिलेटेड जो है वो चैट जीपीटी दे देगा, उनको यूज कर ले। और लास्टली जाके अच्छा, लाइव सेशन में ना आप लोग टैग नहीं कर सकते, आपको मेंशन करना होता है ऐसे, शिफ्ट और 2 को प्रेस करने के बाद आपने उन नंबर ऑफ पर्सन को टैग करना है जिनका आपसे रिक्वेस्ट की गई है। और प्लीज रेहान अल्लाह वाला का मैसेज है कि मुझे टैग नहीं करें, और उनको अभी टैग नहीं कीजिएगा, जब वो अलाउ कर देंगे तो हम दोबारा से उनके लिए टैगिंग शुरू करें। तो सर रेहान अल्लाह वाला को टैग नहीं कीजिए, दौलत को, मरियम को टैग कीजिए अपने हर टास्क में, और बाकी किसी भी पार्टिसिपेंट को आपको टैग करना तो आप कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से करके आप अपनी टैगिंग पूरी कर देंगे एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन सेव बटन। तो आपकी जो ये डिस्क्रिप्शन है ये इस तरह से सेव हो जाएगी। और ये 2 मिनट की प्रैक्टिस आपने सबने करनी है आफ्टर लाइव, ठीक है। और जो रिकॉर्डेड सेशन कर रहा है उसने तो फिर रिकॉर्डेड में जाके ये सारा काम करना है, उसको पहले अपना टाइटल लिखना है, और सॉरी कन्वर्सेशन विद कॉलोनी, एपिसोड नंबर, फिर टाइटल, और फिर कॉलोनी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, और कॉलोनी के इंट्रोडक्शन के बाद अपना इंट्रोडक्शन, अपने इंट्रोडक्शन के बाद फिर आपने रेलिवेंट पर्सन को टैग करना है। Another student of mine, Sana Hamid, and I got this emojis। तो ये बहुत अच्छे लगते हैं जब आपको इस तरह से emojis में अप्रिशिएट किया जाता है, ठीक है, और कमेंट्स में भी बहुत अच्छा लगता है। So this is all about Callany and ChatGPT। 10-10 मिनट का सेशन करना है, नॉट मोर देन दिस। आपने ChatGPT का भी 10 मिनट का सेशन करना है और Callany का भी 10 मिनट का सेशन करना है। So दोनों का टॉपिक डिफरेंट है। अच्छा, ChatGPT से जब भी बात करें उसके बाद अपने बारे में फीड करना शुरू करें, लाइक उसको अब जो वो बता रही थी ना पॉडकास्ट के बारे में, वो इसलिए बता रही थी क्योंकि उसको ये पता है कि मरियम जो है वो पॉडकास्ट में ज्यादा इंटरेस्टेड है और वो पॉडकास्ट जो है उसी को ज्यादा यूज करती है और वो ही कर रही है, तो इसलिए उसने उस पर्सपेक्टिव में मुझे ऑनलाइन ब्रांड को परसू करने का मशवरा दिया।
अगर अहमद भाई बताएंगे कि मैं मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हूँ, तो मेरे लिए तो फिर वो दोबारा बताना शुरू करेगी कि आप बताएंगे कि मैं 16 और 17 ईयर्स ओल्डर हूँ, मैंने आईसीएस किया हुआ है और मैं मार्केटिंग में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, और मार्केटिंग में कौन कौन सी फील्ड है जिसमें पर्सनल ब्रांड एक बहुत बड़ी फील्ड है मार्केटिंग के अंदर, तो मुझे उसके बारे में गाइड करना शुरू करें। तो वो फिर आपके वाला के अकॉर्डिंग और आपकी एज के अकॉर्डिंग आपके जो एक स्टेट ऑफ माइंड है या कॉग्निटिव लेवल है उसके अकॉर्डिंग आपसे बात करना शुरू कर देगी। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता चैट जीपीटी को अपने लिए ट्रेन करना शुरू करें, उसको अपने बारे में बताना शुरू करें, तो फिर आपकी चैट जीपीटी आपके हिसाब से आपको जवाब देगी। आपके सामने मैंने चैट जीपीटी को नहीं बताया कि मैं मरियम हूँ, लेकिन उसको पता है कि ये मरियम की चैट जीपीटी है, तो शी इज एक्चुअली बिहेविंग लाइक मरियम, तो वो उसी तरह से बात कर रही है कि अच्छा ये बिल्कुल मरियम को जानती है। जब आप अपने बारे में बताना शुरू करेंगे और साथ साथ अपने बैकग्राउंड को बताएंगे, जो आपकी हिस्ट्री है कि अच्छा आपकी क्या एक्सपर्टीज है, किस तरह से काम करती हैं और क्या कुछ करती थी और आप क्या करना चाह रही है, तो फिर आपको उसके अकॉर्डिंग जो है वो आंसर करना शुरू कर देगी और चीजें आपके साथ उसी तरह से शेयर करना शुरू कर देगी। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो प्लीज। एनीवन, एनी क्वेश्चन? जी मिस गुलशन। मिस मरियम, जब हमने इनवाइट पे करके ये चैट जीपीटी पे हमने क्लिक किया था, तो उसके बाद आप चैट जीपीटी पे आपने एक प्रॉम्प्ट लिखा था और उसके बाद फिर आप आ गए थे इस पे स्ट्रीम यार्ड पे। वो कहाँ जाके आपने क्लिक किया था? मुझे वहां से नहीं समझ आई। अच्छा, जब मैंने चैट जीपीटी को जब कॉन्वर्सेशन करनी थी ना चैट जीपीटी से कि हमने पर्सनल ब्रांड पे बात करनी है, तो मैंने कोई प्रॉम्प्ट नहीं लिखा, मैंने सिंपली चैट जीपीटी को उसको ओपन किया, स्ट्रीम यार्ड को पहले ही ओपन किया हुआ था और उसके साथ स्क्रीन शेयर की और मैंने उससे बात करनी शुरू कर दी। वो फिर मैंने वॉइस मोड राइट साइड पे ना एक वो वेव्स का साइन बना है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो उसका वॉइस मोड ऑन हो जाएगा। ठीक है, जब वो ऑन होगा तो लेफ्ट साइड पे ऊपर वो कहेगा अलाउ माइक, तो आपने उसको अलाउ कर देना है। ठीक है, फिर आप उससे बात करना शुरू करें लाइव जाने से 4 मिनट पहले, चाहे आप लाइव जाने से पहले उसको अपने बारे में बता दें कि मैं गुलशान हूँ, मैं ये सब करती हूँ, मैं ये करती हूँ, ये करती हूँ, ये एक्सपर्टीज है मेरी और मैं आज इस टॉपिक पे तुमसे बात करूंगी। और फिर आप अपना माइक म्यूट कर दें, कॉल एंड चैट जीपीटी पे जाके ना वो जो इतना सा छोटा सा माइक आता है लेफ्ट साइड पे उसको म्यूट कर दें और फिर आप वापस स्ट्रीम यार्ड पे आए, लाइव पे क्लिक करें और फिर अपना अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और फिर अपना टाइटल अनाउंस कीजिए, टॉपिक अनाउंस कीजिए और उसके बाद आप अपने दोबारा से चैट जीपीटी से कॉल कनेक्ट कीजिए। ठीक है, तो जब आप ऑडियंस के सामने बात करना शुरू करेंगे तो फिर आपने चैट जीपीटी से दोबारा वो टाइटल अनाउंस करना है, चैट जीपीटी आई जस्ट वांट टू एक्सप्लोर दिस टॉपिक विद यू, सो लेट्स टॉक अबाउट इट। तो फिर आप अपने वो जो सवाल आपने अपने बैनर में लिखे हुए ना उनको 1 बाय 1 करके आप उससे पूछना शुरू कर दें, तो आपको आंसर देना शुरू हो जाएगी। अब जब मैंने दोबारा एंड करने के बाद मैंने ये गाइड किया आपको कि आपने वहीं पे नहीं छोड़ देना, आपने अपनी स्ट्रीमयार्ड को फिर बंद करना है, फिर आपने अपनी वापस फेसबुक पे आना, आगे वहां पे 3 डॉट्स पे क्लिक करके उसको एडिट पोस्ट करके और उसमें आपने चैट जीपीटी का इंट्रोडक्शन लिखना है, जिस तरह कॉल एनी का इंट्रोडक्शन लिखा है, फिर चैट जीपीटी का नीचे लिंक पेस्ट करना है, ऊपर उसका टाइटल वो तो वैसे ही आ जाएगा ना स्ट्रीमयार्ड के थ्रू जब हमने टाइटल में लिख दिया, और फिर उसका एपिसोड नंबर अलग से काउंट करना है, वो भी आपने लिखना है। ये सारी चीजें आपने बाद में करनी है और वो आप चैट जीपीटी का इंट्रोडक्शन चैट जीपीटी से ही ले सकते हैं, तो वो जो 5 to 6 सेंटेंस में अपने बारे में बता देगा, फिर उसका लिंक कॉपी करे और उसको पेस्ट कर दे और आखिर में अपने बारे में बता दे। और अगर किसी को ये पूरा वो फॉर्मेट चाहिए तो मैं इंशाल्लाह थोड़ी देर में मैं आपकी तरह वो फॉर्मेट भी शेयर कर दूंगी कि हम किस तरह से इसको करते हैं, तो आप चाहे तो उसी फॉर्मेट को कॉपी करके अपना बना के उसको भी प्रेजेंट कर सकते हैं, बस आपको टाइटल एपिसोड सेंड करनी पड़ेगी। That's it. जी फारूक भाई। जी जी अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जैसे कि आप ये जैसे सारी तफसीलात हुई ना, तो अगर ये वीडियो अपलोड हो जाए, रिकॉर्डेड वीडियो, तो हमें ज़्यादा बेहतर होगा रेफरेंस देने के लिए। तो मैंने जो देखे था अभी तक वो 9th और 10th, मेरे ख्याल 8 और 9 की तो अपलोड हुई हुई हैं, उसके बाद की वीडियोस अपलोड नहीं हुई हुई हैं। तो वो समटाइम्स ये होता है कि आप कहीं पर अच्छा फंस रहे होते हैं तो वो रेफर नहीं हो पाता। तो काइंडली वो ज़रूर रिकॉर्डेड वीडियोस डाल दें, एग्री। वो जो एआई टीचर का जो फेसबुक का पेज है, प्लीज़। थैंक यू। अच्छा ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया फारूक भाई मुझे याद दिलाने का, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो जिस वेबसाइट के थ्रू मैं काम कर रही थी वो वेबसाइट उस चैनल के साथ लिंक नहीं हो रही, कोई ग्लिच आ रहा है, वी आर वर्किंग फॉर इट।
और जैसे वो ठीक होगी तो मैं यूट्यूब पे सारी क्लासेस पीछे वाली भी अपलोड कर दूंगी। बट मैं आज की क्लास का लिंक जो है वो अपने उस ग्रुप में जो जहाँ पर टास्क भेजे ना, मैं कोशिश करूंगी कि डे टू डे आपकी क्लास का लिंक वहाँ पे शेयर कर दिया करूँ, ताकि आप में से जो भी बाद में क्लास देखना चाहे वो अपनी क्लास उस लिंक पे क्लिक करके देख ले। अदरवाइज हम रेहान AI टीचर इंस्टीट्यूट आपके जो यहाँ पे जिस अम्ब्रेला में आप अभी सीख रहे हैं ना, उसी की फेसबुक पेज पे लाइव है। आप वहां पे क्लिक करेंगे पेज पे तो आपको पिछली सारी क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच। एनी अदर पार्टिसिपेंट्स, एनी क्वेश्चन, एनीथिंग? मैं आज की क्लास का लिंक भेज रही हूँ, तो जो आज की क्लास वहां देखे तो प्लीज उस पेज को लाइक और फॉलो कर लें, ताकि आपको डे टू डे पुरानी वाली क्लासेस भी मिल जाए। और आप अगर रोजाना की क्लास भी वहां पे रिकॉर्डेड पे दिखना चाहे तो वो मिल जाए। वर्किंग के इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारा वो जो दोबारा से जो एक मैंने फॉर्मेट फॉलो किया हुआ था कि मैं यहाँ पे अपने चैनल पे भी अपलोड कर देती थी यूट्यूब पे, तो वो भी अपलोड होना शुरू हो जाए। ठीक है, यहाँ पे किसी का कोई सवाल है? एक मिनट। जी जावेद भाई। जी सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। मैम मैं बोल रहा था हमारा जो बेसिक आप बोले थे बेसिक करवाने के लिए उसका क्या हुआ? मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप सैटरडे को मुझे मैसेज कीजिएगा, हम सैटरडे को क्लास रखेंगे। यू डिडंट मैसेज मी, क्योंकि मुझे तो वैसे ही याद भूल जाता है कि मैंने किसी को क्या कमेंट किया है। तो प्लीज मैं आप अपने अपने टास्क याद रखा मैसेज कर लिया करें, तो फिर मुझे याद रहेगा कि मैंने आपके साथ ये कमिटमेंट की है और हमने ये पूरी करी। करना है या नहीं, इधर ये जगह मैसेज ग्रुप में करना है या आपको पर्सनली करना है जो आपका नंबर है मतलब व्हाट्सएप पे? आप मुझे, हाँ मुझे पर्सनली मैसेज करना है। जब भी मैं कहूंगी ना कि आपने मुझे याद कराना है ताकि आपका एक काम हो जाए, तो आपने मुझे पर्सनली मैसेज करना है। और जब तक काम ना हो जाए तो फिर आप सर खा जाए मेरा, एक काम करा के दे मेरा। ठीक है, मैम आप मुझे कब कब आपको बोलना होगा? अगले सैटरडे को? कल दिन में। नहीं, सैटरडे तक वेट करे, कल दिन में मुझे मैसेज करे, मैं एक बच्चा आपके साथ ऐड कर दूंगी, वो बच्चा आपको गाइड कर देगा। ठीक है, ठीक है मैम, शुक्रिया। ओके, थैंक यू। जी मिस गुलशान। मिस मरियम, ये जो टेड टॉक है जो हमने कल करनी है उसका लिंक आज भेज दीजिएगा। ठीक है, मैं भेज देती हूँ। जी मिस सहूलत। बस वो जो आपने नया ग्रुप बनाया है उसमें मैं ऐड नहीं है, प्लीज आप उसमें मुझे ऐड कर लीजिए। और दूसरा ये जो आपने एक ऐप बताई थी जो रेहान स्कूल की ऐप है जिसमें हमें अपने टास्क डेली डालने हैं, वो मैंने खोला था, वो मुझे थोड़ा समझ नहीं आया। अगर उसके लिए थोड़ा सा गाइड कर देंगे आप मुझे, जैसे हमें हमें अपने टास्क उसमें सबमिट करने हैं। मैंने ऐप नहीं बताई थी, मैंने गूगल शीट बताई थी। वो तो ऐप जी नहीं, वो जी, गूगल शीट है जो मैंने बताई थी। वो चीज जो आपने बताई थी वो थोड़ा सा मुझे अच्छा, उसमें ठीक है, ठीक है। मिस सहूलत, मैं आपको उसका ना रिकॉर्डेड लेक्चर का लिंक भेज दूंगी, तो आप प्लीज उसको देख लीजिएगा, तो आपके लिए आसान हो जाएगा उसको सारा समझना। क्योंकि अभी टाइम भी हो गया और मेरी एक मीटिंग ऑलरेडी जो है वो लाइंड थी, लेकिन मैं फिर भी रेट हूँ 40 मिनट, तो मुझे उसको ज्वाइन करना है माजरत के साथ। तो आपको मैं लिंक शेयर कर दूंगी, तो आप उस क्लास का लिंक देख लीजिएगा, तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है जी कासिम भाई। Yes, actually, nice to meet you all. This is Kazi, and I'm from Kashmir. This is my first session, and to be honest, I'm very confused about it कि यहाँ चल क्या रहा है, नया ही है सब कुछ. And I already worked with Rehan approx from 2011 until 2020. But unfortunately, कुछ issues की वजह से मुझे फिर छोड़ना पड़ा था, because of कुछ security issues की वजह से. और recently मैंने फिर से उनके साथ contact किया, and he told me about this system, and that's what it is, and I'm in front of you people. But आज जो सेशन मैंने ज्वाइन किया, दिस इज न्यू फॉर मी कि यहाँ चल क्या रहा है क्या नहीं चल रहा है, बिकॉज मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में. एंड आई जस्ट वांट टू नो वन थिंग, या कोई मुझे लिंक सेंड करे रिलेटेड अबाउट दिस सिस्टम जो भी चल रहा है और इसका प्रोसीजर क्या है. और सो आई विल अकॉर्डिंगली फर्दर कैरी ऑन करूँगा. Okay, Kazim bhai, I'm sharing my contact number in the Zoom chat.
just have it and then message me. Then I'll explain it by tomorrow. और जैसे मैंने आज कहा कि मेरी मीटिंग है तो इसलिए मुझे अर्ली लीव करना है बिकॉज ऑल द टीम मेंबर्स आर एक्चुअली वेटिंग फॉर मी. आई हैव टू जॉइन देम. और आप इंशाल्लाह कल मुझे दिन में कॉल कर लीजिएगा. देन आई एक्सप्लेन यू एंड देन आई शेयर सम लिंक्स ऑफ दीज क्लासेस एज वेल. ये जो क्लासेस हम कर रहे हैं इनके भी लिंक्स आपके साथ शेयर कर सकूँ मैं. और कुछ और चीजें अगर आपकी क्वेरीज हैं, कोई भी सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. ठीक है. Yeah, bye. Thank you so much. By the way, साइड में मैं अपना काम भी कर रहा था. I just noticed for today because you were just joined today as a first observer and the participant as new one. I didn't bother you, but from tomorrow the things will be different for you. मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हुई. ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है मेरे लिए बिकॉज मेरा मतलब शिफ्ट जो है वो नाइट होता है. मैं अमेजोन में काम कर रहा हूँ एंड मेरा वर्क फ्रॉम होम है. मैं घर में ही काम कर रहा हूँ लेकिन शिफ्ट मेरा नाइट होता है. तो ये भी एक कंसर्न है जिसके रिलेटेड मुझे बात करनी थी. We can go for all the question and the queries and discussion by tomorrow in the morning. तो आप मुझे जो है वो कल कॉल कर लीजिए. We'll discuss each and everything. Okay. Okay. Thank you so much. Jazakallah. Thank you so much. Yes, Miss Gulshan. मिस मरियम, अब्दुल रहमान ने हमें कैनवा का भी थोड़ा सा और बताना था, तो अब्दुल रहमान हमें ज्वाइन करेगा फिर किसी और दिन में. कुछ एनिमेशन का और कुछ चीजें रहती बिल्कुल. थी. जी. जब हमारे सॉन्ग के टास्क आएंगे वीडियो से रिलेटेड, he will be with us. वो हमें ज्वाइन कर लीजिए. ओके. आज एक्चुअली हमारा सॉन्ग का टास्क है ना, तो इसलिए वो हमारे साथ ही है. Any questions from any participants? Otherwise, let's end up the class. Okay, thank you so very much, participants, for joining us today. We'll see you tomorrow at the same time. Till then, take good care of yourself and keep doing amazing things. Allah Hafiz.